लेकिन ये जो हार्ट है ये दिन रात काम करता है। तो अभी ये जो हार्ट है उसे उसका क्या इम्पोर्टेंस है, वो क्यों जरूरी है, हम जानेंगे। तो ये the heart is the important because it pumps and force blood to circulate around the body। ये हार्ट जो है हमेशा पंपिंग करता है, हार्ट बीट होता है। आप अभी भी अपने हार्ट में लेफ्ट साइड में हाथ रख के महसूस कर सकते हैं कि ये हार्ट बीट हो रहा है। तो ये हार्ट बीट चल रहा है, इसीलिए ही हम जिंदा है। तो अगर इसे कुछ हो जाए तो हम कैसे जी सकते हैं। तो ये जो हार्ट है 75 टाइम्स पर मिनट बीट करता है एंड 100,000 टाइम्स ए डे विदाउट गेटिंग टायर्ड। ये टायर्ड नहीं होता है, कंटिन्यूसली ये बीट करते ही रहता है, इसकी वजह से ही हम अभी जिंदा है। तो ये जो हार्ट है इसका केयर अगर हम सही से ना ले तो बहुत प्रॉब्लम होता है। और ये जो प्रॉब्लम से अकॉर्डिंग टू WHO 17.9 million people die each year from CVDs, cardiovascular disease। An estimated 31% of all death worldwide। ये वर्ल्ड वाइड का WHO का रिपोर्ट है, रिसेंटली है, जो हार्ट की वजह से इतने लोग मर रहे हैं। तो हार्ट का केयर लेना कितना जरूरी है आजकल के जमाने में। तो ये हार्ट के बारे में हम और भी जानेंगे और इसके बारे में हमें बताएंगे एक हमारे साथ अभी मौजूद है कार्डियोलॉजिस्ट। ही इज ए स्पेशल डॉक्टर एट मिशन हॉस्पिटल दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। ही इज ए इंटरनेशनल फिगर एंड पब्लिश्ड मेनी जर्नल। ही इज ए कार्डियोलॉजिस्ट मिस्टर डॉक्टर तपन माटिया। I request everyone to have a clap and welcome तपन माटिया जी, जो कि एक बहुत ही बड़े कार्डियोलॉजिस्ट है। देवघर में भी हमारे सत्संग में भी स्पेशल डॉक्टर है कार्डियोलॉजिस्ट के। सो लेट्स हैव ए क्लैप सर। हेलो सर। Yes. गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। I'll be sharing the slides. Can I? Yes. And now the screen is yours. Are you able to visualize this screen? Abhi sir, yes. Okay. Am I visible, audible? Yes, sir. Yeah. Yeah, Joy Guru. Thank you, ma'am, for your kind words Okay. and the introduction that you gave about the heart disease. Yeah. I Thank welcome all of you to this August gathering, and it is basically related to our health. Whatever your mission is all about, ultimately it is related to our health. So I will be talking about the cardiovascular aspects or regarding the heart. Usually the cardiovascular disease that madam was mentioning about, basically it comes under lifestyle disease. You must be hearing about this word lifestyle diseases. तो इसमें लाइफस्टाइल मतलब यही होता है कि हमारा जो जीवन चलनी होती है, चाहे वो खान पान हो, रहन सहन हो, बातचीत हो, इंटरेक्शन विद योर एनवायरनमेंट, interaction with people around us, interaction with the environment, with the animals, trees, everything all around us. So due to these interactions, if some mishaps occurs, then ultimately we suffer from diseases. So madam was rightly telling about how many times the heart is beating every minute, every hour throughout our life. And if heart
doesn't beat for a few minutes, then everything is gone. So basically we need to have some knowledge about the I want to know how many are non-ODIs here. What is the percentage of your audience non-ODIs? So it is 25%, more around 60% above ODIs. Okay, Thank you. okay. But So few manageable. slides are there with ODI language, otherwise all Yes, slides sir. are with English. Yes, So sir. I can talk in English and Hindi. Yeah. Yes, sir. English and Hindi. Okay. This slide is about the knowledge that is required for every human being to have regarding whatever the particularly in this pandemic situation that madam was telling about. We need to have some basic knowledge about the sadachar, about the hygienical aspects. Otherwise, we'll fall prey to this COVID virus. That is very important. That minimal knowledge is always required. So Insert more. knowledge leads to salvation and ignorance leads to death. ये कहावत है कि ज्ञान मच लाती है और अज्ञान मौत लाती है. ठाकुर जी क्या बोलते हैं, जो मेरे सदगुरु हैं, आइडियल हैं, देवघर की बात कर रहे थे मैडम. ठाकुर जी बोलते हैं ज्ञान धंधा को ध्वंस करी मनुष्य को प्रकृत चक्षुदान करे. ज्ञान जो होता है, नॉलेज जो होता है, वो एक्चुअली आइज की काम करती है. और ज्ञान जो है वस्तु का स्वरूप को निर्देश करती है. वस्तु का जो रूप जानने से कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वही उसका प्रकृत स्वरूप होता है. और अज्ञानता जो इग्नोरेंस मनुष्य को उद्विग्न करता है, एंजाइटी में लाता है. और ज्ञान नॉलेज मनुष्य को शांत करती है. और अज्ञानता ही दुख का कारण होता है, ज्ञान ही आनंद होता है. तुम जितना ज्ञान की अधिकारी होगे उतना भर शांत होगे. और तुम्हारा ज्ञान जैसा, तुम्हारा स्वच्छंद में रहने का क्षमता भी उतना. इसलिए थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज के बारे में, ताकि आपका रहने का जो स्वच्छंद में रहने का क्षमता बढ़ जाए. सो व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ के बारे में जो WHO डेफिनेशन दिया हुआ था कि फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग होना, ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. उसके साथ बात में ऐड किया इमोशनल वेलबींग, स्पिरिचुअल वेलबींग. एंड ठाकुर जी टेल्स अबाउट फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ. ये तीनों साथ में जब कंप्लीटली हमारे साथ रहते हैं, then only we are a completely healthy being. So what is lifestyle disease? जो मैं कह रहा था कि रहन सहन जो होता है, हमारा खान पान जो होता है, एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन होता है, उसमें जो भी प्रॉब्लम आती है उसमें, तो उसके चलते जो बीमारी हमारे अंदर पनपता है या हम बीमार के शिकार होते हैं, ये सारे डिजीज है. कॉमन डिजीजेस, वेरी कॉमन डिजीजेस, very much profoundly found in our community. There is hypertension, high blood pressure, diabetes, that is your मधुमेह जो बोलते हैं उसको, obesity, मोटापा, और ये जो हार्ट की बीमारी जो बोल लेते हैं, हार्ट अटैक वगैरह जो भी हो, और ब्रेन का जो स्ट्रोक है, कैंसर हो, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो, आर्थराइटिस हो, बहुत सारे सांस की बीमारी हो, और अभी तो ये कोविड भी आप लाइफस्टाइल डिजीज में ही आप गिनना शुरू करेंगे. तो ये सारे जो मेन जो बीमारी आज एपिडेमिक की मात्रा में चारों तरफ फैला हुआ है, ज्यादातर ये लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं. तो कैसे हम ये लाइफस्टाइल डिजीज को, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा रहन सहन में क्या व्यतिक्रम हुआ जिसके चलते हम ये बीमारी में शिकार हुए और बीमार ग्रस्त हुए, और वी इन्वाइटेड द डिजीजेस इन अस because of knowingly or unknowingly the acts that we did, misdeeds, knowingly or unknowingly, thereby we invited the diseases in us. So ये knowledge gain करना जरूरी है कि क्या जो misdeeds था जिसके चलते we invited the diseases in us, these deadly diseases in us. So this can be unhealthy eating, drinking and smoking habits, can be sedentary lifestyle, can be rigid schedule to meet deadlines. You have your deadlines in your office, in your organization. Then odd working hours, you have to meet your deadline. Then frequently staying away from family and home, lot of pollution in air, water, noise. So all this can lead to
some or the other kind of lifestyle disease in us. So ठाकुर जी क्या बोलते हैं, ये रोग को जो निमंत्रण करने के बारे में ठाकुर जी क्या बोलते हैं? ठाकुर जी बोलते हैं जे कौनसी चिंता बा चलन जेतेबेले शरीर विधान को विकृत करी तळे अस्वाभाविक संघातरे व्याधि सही पथरे आसे और व्यतिक्रम ही ताहार वाहन। मनुष्यर मानसिक अवस्था व्यतिक्रमी अनुचलन दुईटा किंतु रोगर उद्भव आनी थाए ता पतला रकम रे हेउ और गभीर रकम रे हेउ एवं जा द्वारा मनुष्यर व्याधि निरोधक क्षमता मध्य अनेक परिमाण रे क्षीण होई थाए। मनटा दुष्ट होलेई जानिस रोगेर आधार होय ओइटाके तुई एड़िए चलिस करी व्याधि जय। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मिसडीड्स मिस एक्ट्स नोइंगली या अननोइंगली जो हम लोग करते हैं, अल्टीमेटली इसका जो मेन ऑर्गन फंक्शनरी जो है वो है हमारा मन, और उसके चलते हमारा जो व्यतिक्रम चलन हुआ जाने अनजाने में, उसके चलते ये सारे बीमारी को हम लोग आमंत्रण किए हमारे घर में, हमारे शरीर में। ये रिस्क देखिए, ये जो व्यतिक्रम चलन के चलते मन जब दुष्ट हुआ, मन को पता नहीं चला कैसे चलना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, खान पान कैसे ठीक होना चाहिए, रहन सहन कैसा ठीक होना चाहिए, एक्सरसाइज कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये तो है नहीं मन में, उसके बारे में जानकारी ही नहीं है। कुछ जानकारी आधा अधूरा लेके बैठे हैं हम लोग, तो इसके चलते कार्डियक रिस्क बढ़ जाता, हार्ट अटैक का रिस्क 53%, कैंसर रिस्क 20-30%, सिमिलरली ये सारे 30-40%, 20%। देन this is the prevalence of cardiovascular disease. Cardiovascular disease is a spectrum. It doesn't only affects the heart, it affects the kidney, it affects the brain, everywhere, wherever the blood goes through vessels. If there is blockage happens in blood vessels, if it occurs in brain, then brain stroke happens. If it happens in heart, then heart stroke happens. If it happens in kidneys, then kidneys are dysfunct. So this prevalence of cardiovascular disease increases with age. एज जितना बढ़ता जाएगा ये बीमारी उतना ज्यादा हमारे अंदर आने लगेंगे, ज्यादा लोग इससे अफेक्टेड होंगे। तो क्या पैथोफिजियोलॉजी है, कैसे ये बीमारी होता है हमारे अंदर, ये है, मैं एक पिक्चर में आपको दिखा रहा हूँ, पिक्टोरियल्स में दिखा रहा हूँ। ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में देखिए नीचे की हिस्सा में जैसे ये येलो कलर की जो पदार्थ है ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, खराब कोलेस्ट्रॉल है, वो जम जाता है। ये एक दिन में नहीं जमता है, ये बचपन से जमा होना शुरू होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है बिकॉज ऑफ आवर इरेगुलर हैबिट्स, irresponsible eating, physical activity habits. This gradually over time, over years and years, decades, gets accumulated in the blood vessel wall. Gradually it limits its ultimate critical stage, leading to angina or minor strokes, and if it ruptures there occurs thrombosis, acute thrombosis, leading to acute blockage, leading to heart attack or brain attack. तो यही चीज है। तो जिसके चलते ये ब्लॉकेज के चलते जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ, जिसको हम लोग प्लेक कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, खान पान से इससे रिलेशन है, फिजिकल एक्टिविटीज से रिलेशन है, एंजाइटी डिप्रेशन से इसका रिलेशन है, ओबेसिटी से रिलेशन। मैं आगे बताऊंगा आपको सारे रिस्क फैक्टर एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ दिस रिस्क फैक्टर्स, दैट आई विल टेल यू। तो ऐसे ही आपको चेस्ट पेन हुआ, आप अल्टीमेटली जब हम लोग एंजियोग्राफी करते हैं पता चलता है कि आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया है और मसल डैमेज हो गई है। कई बार 15 to 20% ऑफ पीपल who have a heart stroke can't reach hospital even, they die at home. 15 to 20%, not a small number. Similarly brain stroke होता है, पैरालिसिस हो जाती है, फिर पैर कट जाती है, पैर का यदि ऐसे आर्टरी ब्लॉकेज हुआ तो इसी हिसाब से अदर जो बाकी जो लाइफस्टाइल डिजीज, कैंसर हुआ, देन ओबेसिटी हुआ, इट अफेक्ट्स ऑल आवर ऑर्गन्स। इस हिसाब से ये सारे बीमारी हम लोग को अफेक्ट करते हैं। तो हाउ टू प्रिवेंट डिजीजेस एंड लिव ए हेल्दी लाइफ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, दैट वी नो। तो क्या कैसे प्रिवेंट करें, प्रिवेंशन के बारे में ठाकुर जी बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य मोर व्यस्त है सुस्थ होगा पाए,
मेरा जो सबसे पहले हम व्यस्त हैं कि नहीं, whether we are actually interested or not. आप जो आज ये जो सेमिनार कर रहे हैं, because you are all interested, you want to know how to live a healthy life. Unless until number one, जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, सबसे पहले उसका कितना चाहत है ये बीमारी से निजात पाने का, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना बात मानेगा डॉक्टर का, कितना सही हिसाब से खान पान सब कुछ रेगुलेट करेगा, और इसके तहत एक सुखमादी एक अंदर काम करती है, आपका रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है और आप सुस्त होने लगते हैं, सुस्त होने का क्षमता ज्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले आपका इंटरेस्ट, व्यस्त होना जरूरी है। क्या, किसके लिए? कि टू लिव ए हेल्दी लाइफ, टू बिकम हेल्दी। तो इसलिए तो सेमिनार कर रहे हैं। तो सुस्थ रहिबार आचरण ही सदाचार, ठाकुर जी बोल रहे हैं सुस्थ रहिबार आचरण ही सदाचार, तेणु सदाचार पालन करो, सुस्थ रहो। तो हेल्दी रहने का जो आचरण जो है उसको सदाचार कहते हैं। सद आचार, सत मतलब अस्तित्व, हमारा जो जीवित रहने का जो आधार है, उसके लिए जो जो आचरण कर बैठना है, खान पान से लेके रहन सहन से लेके एवरीथिंग ऑल अराउंड अस, व्हाट एवर एक्टिविटीज दैट वी आर डूइंग नोइंगली और अननोइंगली, ये सारे से रिलेटेड है हमारा अस्तित्व या बचने बढ़ने का या बचे रहने का, और उसी को सही पालन करना, सदाचार पालन करना, तभी आप सुस्त रहोगे। तो इसके तहत आगे जो मन की बात मैं कह रहा था कि आपका सबसे पहले मन में ही शुरू होता है बीमारी का सबसे पहला बीज, वहां पे बोआ जाता है। आपका मन दुष्ट हुआ, आपका मन किया सिगरेट खाने पीने के लिए, मन किया आपका अल्कोहल लेने के लिए, मन नहीं किया मुझे एक्सरसाइज करने के लिए, मन किया सोने के लिए, तो मन में ही सारे चीज बैठा हुआ है भाई। मन नहीं कर रहा है ये बातें सुनने के लिए, मन नहीं कर रहा है कि कोई हेल्दी बातें सुने, हेल्दी एक्टिविटीज करें, तो मन में ही सारा चीज छिपा हुआ है। तो सबसे पहले मन को सुस्त करना चाहिए, हेल्दी करना जरूरी है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया चीज ठाकुर जी जो दिए वो बोले मनन त्रायते इति मंत्र, जो ये मन को सही सलामत रख पाएगा, ऐसा कोई आधार है? यस, ऐसा कोई आधार है, कोई दवाई नहीं है, वो आधार है सतनाम, और वो जीवंत सत गुरु को लेके वो सतनाम। तो उसके आधार, उसको आधार करते हुए आप चलोगे तब मन आपका सही सलामत रहेगा। मन यदि सही सलामत रहेगा, आपका आचरण सब कुछ आपका सही होगा। तो ये रिस्क फैक्टर है कार्डियोवास्कुलर डिजीज या लाइफस्टाइल डिजीज के लिए। जो रिस्क फैक्टर है पर्टिकुलर कार्डियोवास्कुलर डिजीज के जो रिस्क फैक्टर्स हैं, एक तो मैंने बोला था आपको, और रिस्क फैक्टर को किसको कैसे मॉडिफाई कर सकते नहीं कर सकते इसके बारे में भी साथ साथ में बोल रहा हूँ। इंक्रीज्ड एज, उम्र बढ़ते जाएगा तो बीमारी बढ़ता जाएगा, ये आप नहीं कुछ कर सकते हो, क्योंकि वो एज उम्र तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हेरिडिटी, कुछ बीमारी जो है हेरिडिटरी है, उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। ओवरवेट, ओबेसिटी, यस ये आपके हाथ में है, आप ओबेसिटी से निजात पा सकते हो, चाहे एक्सरसाइज, खान पान, बहुत सारे इंटरवेंशन है जिसके चलते आप ओबेसिटी से निजात पा सकते हो। फिजिकल इनएक्टिविटी, यस ये आपके हाथ में है, आज चाहो तो आज आप शुरू करो फिजिकल एक्टिविटीज। स्मोकिंग, यस आपके हाथ में है, दृढ़ संकल्प लेके आप स्मोकिंग रोक सकते हो। स्मोकिंग से कैंसर से लेकर हार्ट अटैक से लेकर ब्रेन स्ट्रोक से लेकर बहुत कुछ हो सकता है। टोबैको यूज आपके हाथ में। इमोशनल स्ट्रेस अगेन आपके हाथ में है, हाउ मच इमोशनली स्टेबल यू कैन बी और यू वांट टू बी, उसके लिए कुछ इंटरवेंशन से, चाहे मेडिटेशन हो चाहे प्राणायाम हो, बहुत सारे सेशंस हैं जिसके चलते आप इमोशनल स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकते हो। स्लीप अपनिया, ये भी आपके हाथ में। हाई ब्लड प्रेशर, इसको भी कंट्रोल में रखने का जो है वो आपके हाथ में है। हाँ ठीक है, you are suffering from hypertension, but ultimately with medications, with other lifestyle interventions, you can keep your blood pressure under control so that it doesn't affect your kidneys or brains or heart, other organs. High cholesterol, again it is in your hand. Diabetes mellitus, it is in your hand, you can keep it under control. Metabolic syndrome, depression, thyroid disease. So you see, out of all so many risk factors, only 2 risk factors that is not in your hand, but rest of all these factors are in your hand. You can very well control them. तो उसके लिए नॉलेज, उसके लिए दृढ़ संकल्प, और सबसे बड़ा चीज है
किसके प्रति? टान। सबसे बढ़िया चीज जो है इस चीज को कंट्रोल में लाने के लिए वो है किसी के प्रति आपका प्यार। यदि आपका इष्ट, आपके माता पिता, ऐसे कोई है जिसको आधार करके यदि मैं ये चीज करता हूं तो उनको दुख होगा, वो सफर करेंगे, ये यदि भाव हमारे अंदर आ जाता है तो ये सारे चीज कंट्रोल करने में बहुत देरी नहीं लगेगा, बहुत तुरंत बहुत अच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। तो ये थोड़ा जान लीजिए ब्लड प्रेशर का जो गाइडलाइंस है, इसके नॉर्मल लेस देन 120, सिस्टोलिक डायस्टोलिक लेस देन 80, हाई नॉर्मल 120 टू 139, 81 टू 89, 140 सिस्टोलिक एंड 90 डायस्टोलिक, उससे ऊपर जाएगा तो हाइपरटेंशन कहेंगे। बट वंस इट इज इन द हाई नॉर्मल रेंज, बी अवेयर ऑफ योर ऑल लाइफस्टाइल मेजर्स। Then these are about cholesterol. So bad cholesterol LDL 100 से नीचे होना चाहिए, गुड कोलेस्ट्रॉल HDL 60 से ज्यादा होना चाहिए वुमेन में, एंड मैन में 50 से ज्यादा होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड एंड बैड कोलेस्ट्रॉल शुड बी लेस देन 150। व्हाट शुड बी योर आइडियल वेट? एक छोटा सा मैं बहुत बढ़िया आपको फॉर्मूला दे रहा हूं। आइडियल वेट जो होना चाहिए दैट शुड बी 100 माइनस हाइट इन सेंटीमीटर, योर हाइट इन सेंटीमीटर। So 100 minus, suppose your height is 55 centimeter. Suppose, sorry, your height is height in centimeter minus 100. So I have reversed it, wrongly I have written it. Height in centimeter. Suppose your height is 160 centimeter. So your ideal weight should be 160 minus 100, that is 60 kg. Okay, in kg. So please remember this one. Height in centimeter minus 100 is the ideal weight. Okay. Similarly, metabolic syndrome, जिसमें कि आपका ग्लूकोज 100 से ज्यादा हो, ट्राइग्लिसराइड 150 से ज्यादा हो, HDL 50 से ज्यादा हो या 40 से ज्यादा हो मैन में। वेस्ट सर्कमफ्रेंस वेरी इंपॉर्टेंट, आपका एब्डोमिनल गर्थ कितना है? It should be less than 40 in man, less than 35 in women. So these are the instruments that you should keep in your home to measure your, particular in corona pandemic time, आपके पास थर्मोमीटर होना चाहिए, पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए, डिजिटल बीपी मशीन होना चाहिए, ग्लूकोमीटर्स होना चाहिए, सो दैट आपका घर में किसी को कोई भी इस बीमारी में पीड़ित हो, ब्लड प्रेशर में, डायबिटीज में नहीं भी हो तो आप लोग खुद चेक कर सकते हैं। देन कम्स रोल ऑफ वेजिटेरियन डाइट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कार्डियोवास्कुलर डिजीज को हाउ यू वांट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। वेजिटेरियन डाइट का बहुत बड़ा इसमें रोल है, बहुत सारे रिसर्च हुआ इसके ऊपर, और ऐसा है कि कोलैबोरेटिव स्टडी हो या आपका ये सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट स्टडी हो, इटालियन स्टडी, ब्रिटिश स्टडी, जर्मन स्टडी, बहुत सारे स्टडी जैसे हैं जिसमें देखा गया है दी वेजिटेरियन इंटेक, दोज हु आर टेकिंग वेजिटेरियन डाइट, जो शाकाहारी ले रहे हैं मांसाहारी से, उनका मोर्टालिटी 20 to 30% लेस, morbidity 20 to 30% less in comparison to those who are taking non-vegetarian diet. It is well proved. And कोरोना पैंडेमिक टाइम में भी ये देखा गया है, जो शाकाहारी ले रहे हैं वो कम पीड़ित हो रहे हैं कोरोना से, कम संक्रमित हो रहे हैं, संक्रमित हो भी रहे हैं तो उनमें मॉडरेट या सीवियरिटी तरफ नहीं जा रहे हैं, ज्यादातर नहीं जा रहे हैं। उसकी हिसाब से हेल्थ बेनिफिट्स वेजिटेरियन डाइट से, और चाहे कार्डियोवास्कुलर, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, हर किसी लाइफस्टाइल डिजीज में इसका एक बेनिफिट इफेक्ट है। इसमें जो फोलिक एसिड्स होती है, डाइटरी फाइबर होती है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैरोटीनॉइड्स होती है, फाइटोस्टेरोल्स, फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीफिनोलिक, एंटीऑक्सीडेंट्स, ऑल दीज हेल्प्स टू कीप अस हेल्दी। सो ये सारे का हेल्दी इफेक्ट्स है। और स्टेटमेंट्स आप देखिए, अमेरिकन डाइटेटिक एसोसिएशन एंड डाइटेटिशियंस ऑफ कनाडा, इसका जर्नल्स में ये पब्लिश हुआ था, और उसका अल्टीमेटली जो कंक्लूजन था ही था कि कुक्ड मीट एंड फिश कंटेन्स कार्सिनोजेंस व्हिच अल्टर द जेनेटिक मेटल्स एंड डेवलप्स कैंसर। Appropriately planned vegetarian diets are healthful, nutritionally adequate, and provide health benefits in the prevention and treatment of certain diseases. उसी हिसाब से टी कॉलिन कैम्पबेल जो है PhD हल्डो, the professor in nutritional biochemistry at Cornell University, US, and he was the principal director of the largest epidemiological study in the history of humankind, टी कॉलिन कैम्पबेल। उनका जो कंक्लूजन था ये स्टडी करने के बाद, the vast majority of all cancers, cardiovascular diseases and other forms of degenerative illnesses can be prevented
simply by adopting a plant-based diet, vegetarian diet. So he told at last, I now consider veganism to be the ideal diet, the vegan diet, particularly one that is low in fat. ये नहीं कि आप वेजिटेरियन ले रहे हैं तो हाई फैट ले रहे हैं, रोज आप कोई मिठाई खा रहे हैं, ये नहीं चलेगा. ज्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है. ज्यादा कार्बोहाइड्रेट बहुत ही रिस्की है फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू. तो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट संतुलित आहार लेना है, कार्बोहाइड्रेट लिमिटेड लेना है, थोड़ा सा हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, हाई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेना है, प्रोटीन ठीक संतुलित लेना है, फैट जो है हेल्दी फैट आप ले सकते हैं. और इसके बाद बहुत सारे अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कोट्स था, नथिंग विल बेनिफिट ह्यूमन हेल्थ एंड इंक्रीज द चांसेस फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एज मच एज द इवोल्यूशन टू अ वेजिटेरियन डाइट. सिमिलरली ठाकुर जी का बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुआ है. फिश मीट कैसे हमारे शरीर विधान को विकृत कर देता है, हमारी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, स्नायु दुर्बल हो जाते हैं, बहुत सारे कैंसर बीमारी उसमें होती है, इवन इंक्लूडिंग ऑनियन एंड गार्लिक. इसके बारे में बहुत सारे रिसर्च हुआ है. और ठाकुर जी बोलते हैं बेसिक मीनिंग वेजिटेरियन इज टू एनलाइवन एंड नॉन वेजिटेरियन नॉन एनलाइवनिंग. वेजिटेबल डाइट मेक्स ऑफ एक्जिस्टेंशियल ग्लो व्हेयर एनिमल डाइट गॉड्स टुवर्ड्स डिक्रीजिंग द एसेट्स ऑफ लाइफ. माछ मांस खासे नार प्याज रसुन मादक छाड़िए. ठाकुर जी का कॉल, ही गेव अ कॉल टू एवरीबॉडी. Those who follow him, they do follow all these things, that way they lead a very healthy life. So lot many great people are vegetarians. So my take home message is there is a very good thing from Sri Thakur. So you live a ideal centric life. Ideal centric life includes these 5 principles in life: jajan jajan ishtavriti swastani sadachar. So gradually you will come to know, whoever is initiated with Thakur, you can come to know about all these principles. And if you apply these principles in your life, definitely you will gain a very healthy and productive and long life. That is for sure. And in Corona pandemic, I tell you, those who are satsangis and this is a day-to-day kind of a life they're leading, this jajan jajan ishtavriti, they are suffering a lot less than other people around us. Thank you all. यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू तपन सर. आज तक हम तो बहुत से डॉक्टर से मिले, लेकिन पहले बार हम जूम मीटिंग के सहायता से आज तपन सर ने हम सबको बताया कि द रूट कॉज ऑफ डिजीज कहाँ से एक्चुअली होता है. जैसे एक अच्छा चीज बोले तपन सर ने कि मनटा दुष्ट हलेई जानिस रोगेर आथल হয়, এইটাকে তুই এড়িয়ে চলিস করবি ব্যাধির জয়. मतलब तपन सर आज सबको क्लैरिटी दिए कि डिजीज कहाँ से एक्चुअली पैदा होता है, और बहुत सारे चीज हमारा कंट्रोल में होता है. जैसे बताए कि हाई बीपी हमारा कंट्रोल में होता है. तो ये बहुत सारी चीज हमारा कंट्रोल में होता है. अगर हम चाहें तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. सर ने बताया कि सदाचारे रतन होय पदे पदे तार भय. मतलब जो सदाचार मेंटेन नहीं करता है वो पदे पदे उनका भय रहता है. थैंक यू तपन सर, आप आए और इतने मतलब रूट कॉज एक हेल्दी रहने के लिए, जैसे आपको न्यूट्रिशन चाहिए, आपको पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड चाहिए, और जैसे रेस्ट चाहिए, जैसे एक्सरसाइज चाहिए. लेकिन आप पहले जो चीज होता है, जो पहला जो जहां से एक्चुअली डिजीज पैदा होता है, जो मन से जो पैदा होता है, जो माइंड से जो पैदा होता है, और ये चीज को आप इतना अच्छी तरीके से सर बताए. सो वी ऑल आर ग्रेटफुल टू यू सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर गिविंग अस वैल्यूएबल टाइम्स, एंड थैंक यू सो मच कि आप डिजीज कहाँ से होता है ये चीज को आप जानकारी दे दिए सबको. और दोस्तों वही चीज को अगर पालन करेंगे, द रूट कॉज को, क्योंकि जैसे वो बताए सर ने बताया पहले कि जो ज्ञान के क्या होता है, ज्ञान धंधा को ध्वंस करके आदमी को चक्षु प्रदान करता है. तो सर ने अच्छी तरीके से बताया कि जो रूट कॉज, डिजीज का रूट कॉज को अच्छी तरीके से बताया सर ने. तो अगर मन को आज का डेट में अगर मन को हम सही तरीके से ठीक रखेंगे, अगर मन को शांत रखेंगे और स्ट्रेस नहीं रखेंगे, तो इसी हिसाब से हम सारे डिजीज को हम हमारा कंट्रोल में ला सकते हैं. राइट, जैसे सर ने बोले कि स्वास्थ्य. यस सर, जो शेयर कर रहा हूँ अभी, जो आपके सामने जो शेयर कर रहा हूँ स्लाइड, ये जो देख रहे हैं, ब्यूटीफुल, देयर इज अ ब्यूटीफुल श्रीमंदी
amongst the trees in the jungle Yes, yes. itself. This is my Yes. native place, Jashipur. There is a national biodiverse forest is there, reserve Yes. forest is there. That is Simli Pahad. That is a Right. very beautiful forest spread across 100 kilometer and diameter, and there are a lot of waterfalls and all. The entry point is Jashipur, where there is a beautiful Sri Mandir being constructed, and it is at the verge of completion. Just finishing works going on, internal works going on, and this is blessing of our Acharya Dev and Thakur. Lot of doctors, engineers from not only our Odisha but all over India, even outside India, are involved with this project. They have given their contribution, and I will welcome all of you to at least visit this place at least once in your lifetime. You will really enjoy it with a family. We will host you all. Yes, sir. Yes, sir. Definitely, Yes. definitely, And I sir. request Definitely. you all, if you can be part of this mandir, then nothing better than that, Yes. and you will feel at home all the time. So therefore, I showed you this picture. Yes, yes, yes. Yes, sir. और Thank you. Thank you. और Thank you. Thank you. एक उम्मीद है सर आपसे इस सेशन के अंत में आप थोड़ा सा विश्राम ले सकते हैं। इस सेशन में अंत से हम 20 मिनट के बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन, अगर लोगों का कुछ डाउट वो आपसे जानने चाहेंगे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा Sure. अब 20 मिनट के बाद मैं आपको फिर से जुड़ने के लिए कहूंगा। थैंक यू सर। जरूर Manas bhai, जरूर, definitely I'll be there for 15-20 minutes. I'll be there for Yeah. all kind of health related issues, diets, physical exercise. Yes, I'll talk about yes. physical exercise even at that time, because Okay. what we have seen from research, Yeah. diet is more important. Diet constitutes 75% of your health. Yes, sir. Physical exercise only 25%. Okay, so I'll talk about that also later on. Thank you. Okay. Thank you so very much, sir. Thank you so very much. Yes, सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। Yes, yes. Everybody clap. रिक्वेस्ट की तपन सर के लिए जोरदार तालियां। Yes, sir. We are all privileged. Thank you, Jai Yes, Guru, yes. sir. Yes. Over to him, Sudeepa, please. थैंक यू सो मच सर। आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ को, हमारे हार्ट को कैसे क्या करने से क्या होगा। तो अभी ये हार्ट को लेके भी हमारे मोदी जी ने भी कुछ सप्लीमेंट्स बनाए हैं जो कि हम उसे रेगुलरली लेके हम हमारे हार्ट को भी हेल्दी रख सकते हैं, और इसके बारे में हमें बताएंगे हमारे मेंटर डॉक्टर के जैसे हैं। लेट्स हैव ए क्लैप एंड वेलकम मिसेस फालिद जी। थैंक यू अंशुदीपा। पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ तपन सर के लिए, इतना अच्छा सा इंफॉर्मेशन हम लोगों को दिए, बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा, तो बहुत सारे चीज तो बोल दिए सर ने, थोड़ा भी मैं कोशिश करूंगा उससे जल्दी शेष करने के लिए। तो पहला है जो हमारा जो हार्ट होता है, वो हार्ट का 4 काम होता है। एक पहला जो काम होता है पंपिंग ऑक्सीडेशन ब्लड फ्रॉम द पार्ट ऑफ बॉडी। ये क्या करता है, हार्ट क्या करता है, जो पंपिंग करता है, पंपिंग करके जो ब्लड को हमारे जो ऑर्गन होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन होते हैं बॉडी में, उससे ये भेजने में मदद करता है। उसी के साथ ये जो सेकंड काम होता है क्या ना, ये पंपिंग करने के जो करता है तो हार्मोन और वाइटल सब्सटेंस जो होते हैं उससे डिफरेंट पार्ट को भेजता है। और उसी के साथ और क्या करता है ना, रिसीविंग डीऑक्सीजेटेड ब्लड। इसका मतलब है जो खराब ब्लड है उसे वो हर जो ऑर्गन से कलेक्शन करता है। कलेक्शन करने के बाद वो क्या करता है, जो मेटाबॉलिज्म होता है हमारे बॉडी में, उसका जो वेस्ट होता है वो सीधा जाता है कहाँ पर ना, लंग्स पर जाता है। लंग्स में प्यूरिफाई होके अगेन हार्ट को आता है और हार्ट से फिर डिफरेंट पार्ट जाता है। ये यही काम करता है। उसी के साथ ये और क्या काम करता है ना, उसी के साथ ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। इसीलिए ये जो ऑर्गन होता है हार्ट हमारे बॉडी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हमको क्या करना है, ठीक करना जरूरी है। उसे हमने ठीक करके रखना है, और खान पान में जो सारा भी बोले थे उसी का सही तरीका लेके हार्ट को ठीक रखना है। तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर है, साहब तो ऑलरेडी बोल दिए। तो हाई कोलेस्ट्रॉल, उसके बाद बिजी लाइफ एंड प्रॉपर ईटिंग, एंड उसके बाद जो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, स्मोकिंग,
अल्कोहल और सेडेंटरी लाइफस्टाइल और लैक ऑफ एक्सरसाइज, इसी के कारण बहुत सारे हार्ट डिजीज होने की या हाइपरटेंशन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। तो हमारे जो मोदी केयर में कौन सा प्रोडक्ट है जिसे हम हार्ट को ठीक रख सकते हैं, उसमें होता है ना क्या कार्डिया एक्टिव होता है। कार्डिया एक्टिव में उसमें क्या क्या मिला हुआ है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसका जो इम्पोर्टेंट चीज है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देंगे। तो उसमें पहला जो चीज मिलाया गया है अर्जुन का काम क्या होता है, ये एक हेल्थ टॉनिक होता है और ये रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, जैसे कि जो डिजीज होता है हार्ट डिजीज का, उसको रिस्क को कमाने में ये मदद करता है। और क्या करता है ना, स्ट्रेंथ जो होता है, मसल का जो स्ट्रेंथ होता है, इसे ये बनाने में मदद करता है। उसी के साथ ये जो ब्लड प्रेशर होता है, हमारे जो ब्लड प्रेशर होता है कभी हाई होता है कभी लो होता है, ये जो ब्लड प्रेशर होता है इससे ये मेंटेन करने में मदद करता है। उसे और क्या करता है ना, जो हमारा जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है जो कि आपका हार्ट के लिए खराब होता है, उसे ये कमाने में भी बहुत सारे मदद करता है। उसी के साथ और क्या करता है ना, आपका जो इम्प्रूविंग जो होता है, जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो ये ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव भी करता है और कोरोनरी आर्टरीज से ज्यादा ब्लड को फ्लो करता है, ताकि आपका जो हार्ट में जो मसल में इज्मिक डैमेज ना हो, कोई भी डैमेज ना हो, इसीलिए ये ब्लड का सर्कुलेशन करने में मदद करता है। कौन? अर्जुना। तो उसी के साथ और क्या करता है, इसमें नेचुरली रिच को क्यूटेन मिलाया हुआ है, इसीलिए ये स्ट्रेंथ हार्ट मसल को स्ट्रेंथ करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी ये मदद करता है। उसी के साथ ये जो गूगल होता है, गूगल का काम क्या होता है, सपोर्ट नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लिपिड्स एंड प्रोफाइल, जो हमारा जो लिपिड प्रोफाइल होता है इसे ये कंट्रोल करने में मदद करता है। एलडीएल को कमाने में मदद करता है, कि जो खराब चीज है, खराब फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, उसे कमाने में मदद करता है। उसी के साथ ट्राइग्लिसराइड लेवल को कमाने में भी मदद करता है और एचडीएल को जितना हमारा बॉडी को चाहिए उतना रखता है। ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन हमारे बॉडी के लिए सही होता है। एलडीएल क्या होता है ना, एलडीएल खराब होता है, इससे अगर बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, तो हार्ट अटैक होने की रिस्क फैक्टर बहुत बढ़ जाता है। उसी के साथ और क्या मिलाया गया है, उसके साथ अश्वगंधा मिलाया गया है। ये क्या करता है अश्वगंधा, ये नॉर्मल जो कोलेस्ट्रॉल होता है और ट्राइग्लिसराइड होता है उसे कमाने में मदद करता है। अगर हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया या ट्राइग्लिसराइड हो गया तो अश्वगंधा उससे क्या करता है, कमाने में मदद करता है। उसी के साथ और क्या करता है, तो ये जो उसी के साथ एक स्टडी किया गया है, अश्वगंधा देने के बाद ट्राइग्लिसराइड 53% रिड्यूस हो गया, जिसका मानिए ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो या कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो, तो ये अश्वगंधा देने के बाद 53% रिड्यूस हो गया है। उसी के साथ जो एलडीएल होता है वो 70% रिड्यूस हुआ है और जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो 45% का रिड्यूस होता है। ये अश्वगंधा एक बहुत अच्छा चीज है। अगर आपने अर्जुना के साथ अश्वगंधा देते हैं तो ये क्या करेगा ना, आपका जो ब्लड प्रेशर है उससे पूरा कंट्रोल में रखेगा। तो उसी के बाद और एक चीज इसमें मिलाया गया है अनार, जिसको बोलते हैं पोमीग्रेनेट, जिसमें उड़िया में बोलते हैं दालिम्ब। इट इज द ऑक्सीडेशन प्रिजर्वेटिव, प्रिवेंशन करता है, आपका जो हार्ट का डिजीज होने का चांसेस बहुत कमाता है। उसी के बाद इसमें मिलाया गया गुटुकुला। गुटुकुला का काम क्या होता है ना, ये जो ब्लड सर्कुलेशन है और जो कंजनिटिव फंक्शन है ये रिड्यूस करता है और स्ट्रेस को कमाता है और हार्ट को हेल्दी रखता है। उसी के साथ और क्या मिलाया गया ना, शंख भस्म। शंख भस्म में क्या होता है, शंख भस्म एक पाउडर जैसी चीज होता है, उसमें क्या होता है, उसमें ज्यादातर कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है और आयरन होता है, ताकि आपका जो पंपिंग करने का कैपेसिटी, जब आपका एज बढ़ेगा तो क्या होगा ना, धीरे धीरे आपका जो हार्ट होता है वो स्लॉगिश हो गया, बड़ा हो जाएगा, यानी कि पंपिंग करने का कैपेसिटी कम जाएगा। उसके मसल जो होता है वो मसल धीरे धीरे ढीला हो जाएगा, यानी कि जो पंपिंग करने का कैपेसिटी जो हार्ट का वो धीरे धीरे कम जाएगा। अगर ये शंख भस्म होता है तो ये क्या होता है ना, उससे जो मसल को टाइट करता है और ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है, ब्लड को और उसके साथ आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और मसल को स्ट्रेंथ करता है
और आपको हार्ट को ठीक रखता है। ये है कार्डियक एक्टिव ऐसी प्रोडक्ट है। तो ये इसके बारे में एक टेस्टिमोनियल देना चाहता हूँ। ये जो कार्डियक एक्टिव होता है मैंने बहुत लोगों को दिया है, तो उनका क्या होता है ना, खाने के बाद या कोई एलोपैथी औषध खाते थे लेकिन ब्लड आपका ठीक तरह कंट्रोल नहीं होता था। लेकिन 3 महीने खाने के बाद जो हमारा जो कार्डियक एक्टिव खाने के बाद उनका जो ब्लड प्रेशर है बहुत सारे कंट्रोल में हो गए। तो उसी के साथ और क्या होता है, और एक चीज है मल्टीविटामिन एंड मल्टीमिनरल। तो मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल के मैंने जो 6 फाइटोन्यूट्रिएंट है, 2 अमीनो एसिड है, मैं उसके बारे में नहीं बोलूंगा। उसमें जो मिलाया गया विटामिन, वो विटामिन कैसे आपको हार्ट के लिए अच्छा काम करता है उसी के बारे में मैं बोलूंगा। तो इसमें क्या होता है ना, B5 होता है, जो मल्टीविटामिन होता है विटामिन में B5 होता है। वो क्या काम करता है ना, फाइट अगेंस्ट स्ट्रेस एंड एंजाइटी एंड स्ट्रेस एंड उसके करने से क्या होता है, जो अगर स्ट्रेस एंजाइटी आपके अंदर रहेगा तो आप क्या होगा ना, वो धीरे धीरे आपका जो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर के बढ़ने बाद वो हार्ट को भी अफेक्ट कर सकता है, तो हार्ट भी प्रेशर में आ सकता है, तो हार्ट आप ठीक तरह काम नहीं करेगा। इसीलिए ये मल्टीविटामिन में ये जो चीज मिलाया गया है ये बहुत सारा हेल्प करेगा आपको हेड के ठीक रखने के लिए। अभी सर बोल रहे थे फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड क्या काम करता है ना, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को ठीक करता है, उसे आरबीसी फॉर्मेशन में ये करता है, साथ हेल्प करता है। उसी के साथ जो कार्डियोवास्कुलर जो है उसे ठीक करने में ये मदद करता है। उसी के बाद और क्या आता है ना, उसी के बाद विटामिन ई आता है। विटामिन ई का काम क्या होता है ना, वो जो हार्ट और सेलुलर हेल्थ को ठीक रखता है। उसके बाद आता है कैल्शियम। कैल्शियम हम सब लोग जानते हैं कि कैल्शियम बेटर ऑब्जर्वेशन के लिए बॉडी में आप हड्डी को ठीक करने में मदद करता है, लेकिन कैल्शियम भी आपका जो हार्ट का जो रिदम होता है उससे भी ठीक करने में ये मदद करता है कैल्शियम। उसके साथ मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम क्या करता है ना, कार्डियोवास्कुलर जो फंक्शन होता है उसे सही करने में ये मदद करता है। और क्या होता है ना, लिकोपिन। लिकोपिन जो हमारे मल्टीविटामिन में जो 6 फाइटोन्यूट्रिएंट है उनमें से एक है। ये क्या काम करता है, ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और गुड फॉर हार्ट है। ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। यानी कि आप सोचिए मल्टीविटामिन में इतनी चीज है, वो तो बहुत सारी चीज है, लेकिन हार्ट के लिए इतनी चीज है, अगर आप डेली लेते हो तो बहुत सारे हार्ट में जो प्रॉब्लम होते हैं उससे हम ठीक कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका एक प्रोडक्ट। उसी के बाद हमने क्या करते हैं ना, और एक प्रोडक्ट है जो मोदी केयर में, फ्लैक्सीड ऑयल, जो ओमेगा 369 है। वो ओमेगा 369 क्या करता है ना, आपका जो हार्ट होता है ये वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। आपका जो वेट मैनेजमेंट में ठीक करता है, बहुत सारे ब्लड प्रेशर है उसे कमाने में मदद करता है, और LDL HDL को कमाने में ये मदद करता है, ताकि आपका हार्ट ठीक रहे, ठीक तरह फंक्शन करे, और बहुत सारे हार्ट डिजीज को ये ठीक करता है। उसी के साथ बहुत सारे डिजीज होते हैं, जैसे कि जॉइंट पेन होते हैं, जैसे कि साथ आपका स्किन में प्रॉब्लम होता है, तो उससे भी ये ठीक करने में मदद करता है। इसी तरह वेल फ्लैक्स ऑयल भी बहुत सारे डिजीज को आपका, जैसे कि ट्राइग्लिसरीड हो, LDL हो, उसे कमाने में मदद करता है और आपका हार्ट को ठीक रखता है, ताकि आप आगे जाकर कोई भी, अगर इसे आपने लॉन्ग टर्म में लिया फ्लैक्स ऑयल को, तो बहुत बेहतरीन आपका जो हार्ट हेल्थ में बेहतरीन काम करेगा। उसके बाद आता है और एक प्रोडक्ट है जिसे गार्लिक फॉल। गार्लिक फॉल का काम क्या है, ये जो ब्लड प्रेशर है, आपका जो ब्लड प्रेशर है उसे नॉर्मल रखने में मदद करता है। उसी के साथ ये LDL को कमाता है। और एंथियोस्क्लेरोसिस, अभी जो सार दिखा रहे, एक जो आर्टेरियर में जो येलो कलर का जो फैट होता है उसे बोलते हैं एंथियोस्क्लेरोसिस। एंथियोस्क्लेरोसिस में ब्लड आपका सर्कुलेशन नहीं होता है, ब्लड कम जाता है, इसीलिए हार्ट में इचिंग होता है, इसमें पेन होता है। इसीलिए हमने कि इस जो गार्लिक फल खाने से, अगर आपने लॉन्ग टर्म गार्लिक फल को लेते हो तो बहुत सारे बेनिफिट आप दे सकते हो। उसी के साथ और क्या होता है ना, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, LDL को कमाता है, और HDL को मेंटेन कर रखता है, और बहुत सारे डाइजेशन को ठीक करता है, और इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में भी ये बहुत सारे मदद करता है गार्लिक फल। तो ये 4 प्रोडक्ट मैंने बोला। उसी के साथ हमारे और कुछ प्रोडक्ट है जो कि
हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। पहला है ग्रीन टी। ग्रीन टी जो आप लेते हैं तो ग्रीन टी में क्या होता है, ग्रीन टी में एलडीएल को कमाने में, यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को कमाने के लिए ये बहुत मददगार है। ये कोलेस्ट्रॉल भी कमाता है, आपका हार्ट को भी हेल्दी रखता है, डाइजेस्टिव सिस्टम या डायबिटीज को ये भी कंट्रोल करके लगता है। अगर ये आपने ग्रीन टी को हर दिन लिए तो बहुत सारा फायदा आपका हार्ट के लिए बहुत फायदा मिल सकता है। उसी के साथ और एक प्रोडक्ट है हमारा जो कुकिंग ऑयल होता है। कुकिंग ऑयल में क्या होता है ना, होराइजन 1200 है। जितने भी मार्केट में प्रोडक्ट होता है वो 1100 या 1000 के नीचे होता है होराइजन। जिस प्रोडक्ट में होराइजन ज्यादा हो वो हार्ट हेल्दी रहेगा, वो हार्ट के लिए काम करेगा। और ये जो स्मोकिंग पॉइंट है, जो राइस ब्रान का स्मोकिंग पॉइंट है, तो ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट ये ज्यादा है, ताकि ये जो तेल है ज्यादा नहीं पुड़े। और ज्यादा पुड़ने से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट फॉर्मेशन होता है। जो ट्रांसपोर्ट फॉर्मेशन होता है, जो ट्रांसपोर्ट जो होता है वो आपके हेल्थ के लिए अच्छे खराब है, उसका आपका जो हार्ट के लिए भी खराब है, क्योंकि बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट निकलते हैं। उसी के साथ वो फैट कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन हमारा जो राइस ब्रान है वो पूरा आपका जो क्या होता है, आपका बहुत सारे स्मोकिंग पॉइंट बहुत हाई है। उसी के साथ वो बहुत सारे जैसे कि अपना कैंसर को भी प्रिवेंशन करने के लिए ये मदद करता है। और उसी के साथ हार्ट को ठीक रखने में भी ये मदद करता है। उसी के साथ हमारा और एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसका नाम है वेल प्लांट प्रोटीन। वो प्लांट प्रोटीन क्या करता है ना, WHO रिकमेंड किया है अभी, अगर एक आदमी 25% डेली आपका जो सोया प्रोटीन लेते हैं तो आपका कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने का रिस्क फैक्टर बहुत कम जाता है। इसीलिए हमारे पास इतने बहुत सारे प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट होने के बाद हमने ये जो चीज हमने बोला, कार्डियोएक्टिव ने सारबीट बोले थे, जो आपने ये प्रोडक्ट लेने के बाद बहुत सारे खान पान में भी आप कंट्रोल करना। आगे मानिए किसी का इचिंग हो रहा है, किसी का पेन हो रहा है, किसी का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो आपको क्या करना है ना, आपको टोटल वेजिटेरियन 2-3 महीने के लिए वेजिटेरियन बनना है। और उसी के साथ जो मिल्क प्रोटीन है, जो मिल्क होता है, मिल्क प्रोडक्ट होता है, उसे भी बंद करना है। उसी के साथ सॉल्ट, शुगर और बहुत सारे रिफाइनिंग प्रोडक्ट यानी कि मैदा और फास्ट फूड, उसे भी बंद करना है। उसी के बाद हमें क्या करना है, ठीक टाइम में खाना है, खाने के आधा घंटा 1 घंटा के बाद सोना है और सुबह उठना है। तो ये सब आज डेली हमें 1/2 किलोमीटर चलना है, 1/2 किलोमीटर या हाफ एन आवर आपको चलना है। अगर ये सब चीज आप करते हो, उसी के साथ सप्लीमेंट लेते हो, तो आप बहुत सारे फायदेमंद होगा। क्योंकि ये मैं दे चुका हूँ, बहुत अच्छी सी रिजल्ट पाया हूँ, इसीलिए मैं 4 प्रोडक्ट को आपके साथ शेयर किया। और ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारे जो मोदी केयर में। आगे जाकर अगर आपने इसको यूज किया तो बहुत सारे रिजल्ट पा सकते हैं। दैट्स ऑल माय प्रेजेंटेशन। अभी मैं बुलाना चाहता हूँ जो हमारे जो पुरी का लीडर है मिस्टर राजेश राठौर को, वो आपको इस प्रोडक्ट के आपका जो टेस्टिमोनियल देने वाले हैं। उसी के साथ कुछ प्रोडक्ट का वो ये कार्डियोएक्टिव का डेमो दिखाने वाले हैं। तो ओवर टू राजेश राठौर। थैंक यू। हेलो सर। यस राजेश जी तो है। राजेश उनका नाम राजेश राथ जैसे हुआ है ना सिस्टम में, राजेश राठौर से ही ज्वाइनिंग हुए हैं। मैं एक बार चेक करता हूँ, फोन करो राजेश। ओके, वो शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम इशू है। ठीक है मानस जी, तुम कंटिन्यू करो। अभी जब तक राजेश, हाँ ये ओवर टू एम सुदीपा, नेक्स्ट बुला लीजिए। यस, आई थिंक अभी नेटवर्क इशू ज्यादातर जगह में वेदर प्रॉब्लम। तो अभी मैं बुलानी चाहती हूँ
मेरी मम्मा, और उसके बाद वो हमारे सीनियर डायरेक्टर है और मेरे गुरु भी है, मिस टुटुल मित्र जी. So let's have a clap and welcome Mrs. टुटुल मित्र जी. So let's have a clap and welcome मम्मा टुटुल जी. अच्छा. Good Modikar morning. Good Modikar morning, madam. Good Modikar morning, all of you. और स्पेशली थैंक्स गोपाल जी, गोपाल सर, हम लोग को इतना सुंदर अपॉर्चुनिटी देने के कारण, और मानस जी, उनके वजह से हम लोग यहाँ हैं, हम कुछ बोल पा रहे हैं. और तपन सर को भी मानस जी लाए थे, इसलिए तपन सर को भी बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत सारे हार्ट के बारे में बताए. और पालित जी जो हमारे मेंटर हैं, जो हमें यहाँ लाए हैं, और जो भी हमें प्रॉब्लम हो वेल के बारे में वही हमें बताते हैं. मैं मेरे बारे में बताती हूँ. जब मेरा हाई बीपी हुआ था तो थोड़ा ही क्रॉस किया था, बॉर्डर लाइन बोल रहे थे डॉक्टर, तो मैंने कोई भी टैबलेट नहीं लिया है एलोपैथिक का, सिर्फ कार्डियोएक्टिव ही यूज कर रही थी. और उसके साथ मल्टीविटामिन और प्रोटीन तब तो प्रोटीन था, सोया प्रोटीन, उससे मैं ले रही थी. 2 साल के पहले का बात है. और उससे लेने के बाद मेरा बीपी जब मैंने चेक किया तो वो 3 महीने के बाद नॉर्मल हो चुका था. अभी मेरा जो बोलते हैं ना एज होने से बीपी भी बढ़ जाता है, लेकिन अभी मेरा बीपी नहीं है और मैं ठीक ठाक हूँ. लेकिन मैं जब मेरे दोस्त को बोलती हूँ ये बात, तो उन्होंने बोलते हैं जो एज होने से बीपी बढ़ता है और मैं भी टैबलेट ले रही हूँ, तुम नहीं लेते हो, लेने से अच्छा ही है. कभी कभार हो जाता है बीपी, तुमको मालूम नहीं होगा. तो हम बार बार 2-3 महीने के बाद भी हम उससे चेकअप करा लेते हैं बीपी को, तब भी नहीं हुआ है. और बीच में चेस्ट पेन हुआ था, तो इसीलिए मैंने ईसीजी भी किया था, तो इसका रिपोर्ट भी नॉर्मल है. और देखा तो चेस्ट पेन क्यों हो रहा है, तो वो गैस के कारण हो रहा था, जो मैंने पिछले बार भी बताया था. जो नोनी है उसका सोल्यूशन भी निकल गया. मोदी का थैंक्स टू समीर मोदी जी, जो हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लाते हैं, जिनके कारण हमें कोई डिजीज से छू नहीं पाता है. अभी तक मैंने ठाकुर जी के दया से मैं अभी तक कभी कोई भी मेडिकल नहीं गई हूँ. फर्स्ट टाइम आज गई थी क्योंकि वैक्सीन लेना था मेरे को. थैंक यू सो मच, सबको धन्यवाद. और राजेश जी अगर हैं तो उनको मैं इनवाइट करना चाहती हूँ. राजेश जी. मैडम नेटवर्क का इशू है शायद, वो आ गए फिर. ओके. मानस जी, हमारे जो गुरु मेंटर हैं, जिनके कारण हम यहाँ पर हैं, जो कुछ बोल पा रहे हैं, उनके ही कारण बोल पा रहे हैं. तो उनको राजेश जी अभी आ गए मैडम. राजेश जी अभी आ गए. देखते हैं. राजेश जी खुद को अनम्यूट करो. राजेश जी. राजेश जी वेलकम. राजेश जी, नाउ स्क्रीन इज योर्स. थैंक यू सो मच. यस मनोज जी, तुम कंटिन्यू करो. So good Modikar morning friends. अभी आज जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको एक चीज बताया था, दैट इज ऑक्सीडेटिव डैमेज, फ्री रेडिकल फॉर्मेशंस. आज जो हार्ट से रिलेटेड जो मॉलिक्यूल है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा. ये जो गुड मोदिकर मॉर्निंग. हाँ यस राजेश जी. हाँ मनोज जी अभी बता रहे हैं. कंटिन्यू प्लीज. यस ओके. यू प्लीज कंटिन्यू. मैं आपको
आज इस कंपाउंड के बारे में बताना चाहूंगा। ये जो कंपाउंड है जिसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, आप देख रहे हैं जो दिखने के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच डबल बंड है। ये कंपाउंड की अहमियत क्या है दोस्तों? ये कंपाउंड आपके बॉडी में, जो सर ने जैसे बताया, डॉक्टर तपन मटिया सर ने बताया आपको, ब्लड जो आर्टरी होता है वो कंट्रैक्ट हो जाता है। क्यों कंट्रैक्शन होता है? इसके वजह बहुत है, पर जब कंट्रैक्शन होता है इसको हम कैसे रोकेंगे? ये रोकने के लिए ये कंपाउंड की अहमियत बहुत है, जो जिसकी भूमिका मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा। ये कंपाउंड के जो सिंथेसिस है इसे कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज 3 तरह के पद्धति से हो सकता है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। पर ये इसका काम क्या है, जो हमारे जो वितिश बाबू ने बताया, अमीनो एसिड्स, एक है अर्जिनिन, एल अर्जिनिन, वो कन्वर्ट होता है एक्चुअली नाइट्रिक ऑक्साइड में। उसके लिए एक जो एंजाइम होता है जो इसे कन्वर्ट करता है। तो ये प्रक्रिया को हम कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। पर ये हम इसकी इंपोर्टेंस क्या है NaCBD या शरीर में, इसकी अहमियत ये है, बहुत सारे काम है। आप सोचो अगर आपके कंट्रैक्ट हो गए आर्टरी तो क्या होगा? आपके प्रेशर बढ़ जाएगा और प्रॉब्लम में आ सकता है। तो इसलिए डिजीज CBD मतलब हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाता है। पर अगर ये कंपाउंड सही मात्रा में, उसकी मात्रा भी बताया गया है, पर डे एक आदमी को इसका 1200 mg की जरूरत है। अगर ये सही मात्रा में है दोस्तों तो क्या होता है, आपकी जो पंपिंग एक्शन, आपके जो आर्टरी में का कंट्रैक्शन नहीं होता, वो ओपन हो जाती है और आपके ब्लड फ्लो इजी हो जाता है, सिंपल हो जाता है। जिस तरीके से, जिस मात्रा में वो जाना चाहिए वो कैरी होता है दोस्तों। पर इसकी कमियों को हम कैसे पूरा कर सकेंगे? नेचर बहुत काम अपना कर चुका है। ये जो सारा अभी बता रहे थे एक्सरसाइज, सबसे बड़ा जो एक्सरसाइज होता है जो हम लोग करते हैं, पूरक, रेचक, कुंभक, अपने आप जो हम सांस लेते हैं, हाँ गोपाल सर दिखा रहे हैं, तो ये सांस जब नॉर्मली हम लेते हैं दोस्तों, इसके जरिए जो ऑक्सीजन हमारे नोज के अंदर कुछ चीजें ऐसा है जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को वो कंपाउंड बना के नाइट्रिक ऑक्साइड बना के अंदर छोड़ते हैं, तो वो अंदर जाके अपना जो काम करना है करता है। पर दोस्तों अगर कभी कभार, इसलिए साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, रात को अपने माउथ को सील कर देते हैं। अगर किसी ने गलती से माउथ में वो सांस लेने की प्रक्रिया दिया तो पूरा एंटायर सिस्टम बाईपास हो जाती है। तो ये फायदा सफिशिएंट नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं मिलता है दोस्तों। तो हमारे योगा में भ्रामरी नाम का एक चीज है, जो जिसको अगर आप करेंगे, ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड ये हमारे शरीर के अंदर जाएगा। सो दोस्तों सबसे बेस्ट है अपने ये जो सांस लेने की प्रक्रिया को सही रखना है। वैसे ठाकुर जी भी बताए हैं, जितना मतलब ये कितने बार जो नाम होगा लेके छोड़ने के अंदर, ट्वाइस 4 टाइम्स, उससे बहुत मल्टीप्लिकेशन, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। उसके बारे में आप बाद में जान सकते हैं। और रही खान पान के बारे में, सर बता रहे थे खान के, ये इसके लिए जो इन अर्जिनिन के न्यूट्रिशन है, नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाने के लिए बहुत सारे नेचुरल हमारे खान पान है। जैसे बीट रूट्स अगर आप खाएंगे, बीट के अंदर नाइट्रेट्स हैं और वो भी आपकी सप्लीमेंटेशन करेगा। वाटरमेलन में है, और ये सब अलग अलग कारण है। और हम ले सकते हैं, हनी भी ले सकते हैं, हनी में भी नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल ठीक होते हैं। और टर्मरिक लेने में क्या होता है, टर्मरिक जो कर्क्यूमिन है वो क्या करता है, इन्फ्लेमेशन को रोकता है, मतलब ऊंड होने में रोकता है। डैमेजेस जो आर्टरी के अंदर जो डैमेजेस है वो उसे ठीक कर लेता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाने का और एक कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे साइट्रस फ्रूट्स, और हमारा तो विटामिन सी जिसमें सफिशिएंट है। सैल्यूट मोदी जी जो हमारे पास आंवला है, वो तो उसमें आप ग्रेप्स ले सकते हैं, लेमन ले सकते हैं, एनी साइट्रस फ्रूट्स।
और लीफी जैसे स्पिनाच, जैसे कैबेज, वो भी खा सकते हैं। तो बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम खाने से नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल बॉडी में सही रहेगा। थैंक्स टू मोदी जी। क्या आप एक बार बात करके देखिए। और मैं तो सोचता हूँ ग्रीन टी में ना एल-आर्जिनिन और एलोवेरा के कॉम्बिनेशन से, अगर ग्रीन टी एलोवेरा आप ले रहे हैं, आप सोचिए आर्जिनिन की कोई कमी आपके अंदर नहीं होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस होगा। आप जानते हैं जब हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है, कुछ कुछ डॉक्टर सोडियम नाइट्रेट को इंजेक्शन के जरिए दे रहे हैं। तो जो नाइट्राइट में होती है, नाइट्राइट नाइट्रिक ऑक्साइड में आती है। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड का जो कंपाउंड की अहमियत इतना है दोस्तों, इसमें से एक नोबेल अवार्ड ले चुके हैं डॉक्टर। सो इतना इंपोर्टेंस है और हम लकी हैं, हमारे पास जो सारे प्रोडक्ट्स नीतीश बाबू ने आपको बताया इसके अंदर ये चीज की ध्यान रखा गया है। सैल्यूट मोदी जी, थैंक यू सो वेरी मच। अगर राजेश लाइन में है तो आ सकते हैं, नहीं तो मैं राजेश, अगर आप हैं क्या? राजेश हैं? यस राजेश जी। जी हाँ, यस यस। ये जस्ट गिव योर गुड मॉर्निंग। थैंक यू। गुड मोदी मॉर्निंग। गुड मोदी मॉर्निंग ऑल। गुड मोदी मॉर्निंग। जय जगन्नाथ। और फर्स्ट ऑफ ऑल thank you Mr. Gopal Chandra Sahu, our GBD, the most dynamic leader I have seen since last 20 years. और मेरे बड़े भाई मानस जी जो एसीडी हैं, सबको जय गुरु। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आज कार्डियोएक्टिव के ऊपर कुछ आप लोगों को बताऊंगा, एक डेमो दिखाऊंगा। एक्चुअली मैं बात करते करते आप लोगों को दिखाता हूं, और मेरे को हेल्प करने के लिए अपनी बेटी सिद्धिका को हेल्प करता हूं, क्योंकि हम लोग थोड़ा इसमें एक्वेंटेड नहीं है। प्लीज डू दिस। अभी मेरे सामने मैं मोदी केयर का जो प्रोडक्ट सब यूज कर रहा हूँ, वो तो सब कुछ प्रोडक्ट्स इधर रखा हुआ हूँ। बेसिकली मैं आपको वो कार्डियोएक्टिव का जो डेमो दिखाने जा रहा हूँ। पहले एक ग्लास वाटर में मैंने लिया है, और इसके अंदर सरसों का तेल होता है, ऑयल, उसमें मस्टर्ड ऑयल, उसमें कुछ ऑयल डालूंगा। डालो बस। और इसमें ये देखिए, इनमें कार्डियोएक्टिव का ये इसमें है गोली। तो गोली को थोड़ा मैं उसका मतलब पाउडर बना के रखा हूँ, इसको ग्लास में डालूंगा। फिर आप इसका नतीजा देख पाइएगा क्या बेनिफिट्स इसमें मिलता है। डालो। और अभी मैं इसको अभी डाइल्यूट कर रहा हूँ, इसमें मिला रहा हूँ। अभी पता चल जाएगी थोड़ी देर में, क्योंकि अगर मैं तिल को डालता तो कुछ ज्यादा समय ही ये ले जाएगा, इसलिए मैं इसको डालता हूँ। और थोड़ा अभी इसको छोड़ देता हूँ कुछ सेकंड्स के लिए। फिर मैं एक्चुअली मैं क्या बता रहा हूँ, मेरा तजुर्बा में बोल रहा हूँ। पिछले 2017 अप्रैल के महीने में मेरे को थोड़ा एक छोटा सा मतलब एक हार्ट अटैक आ गया, और जिसके वजह से मैं पता चला कि मेरा एक स्टेंट हुआ था, वो एक ब्लॉकेज आया, इसलिए मेरा एक स्टेंट लगा हुआ है। तो वो कार्डियोवास्कुलर जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, किसी को आप लोग समझ सकते हैं, तो हार्ट का डिजीज सुनते ही लोगों का मतलब होश उड़ जाता है, वही खड़ा वो उसको स्ट्रोक हो जाता है, वो आदमी चला जाता है ऊपर। लेकिन फिर थोड़ा पेशेंस रखा, और फिर मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा, स्टेंट हो गया। फिर उसके बाद मैं एकदम मेरा खान पान जो कहते हैं आदमी का एक्चुअली खान पान बिगड़ने से ही सब प्रॉब्लम आ जाता है। हमारे उड़िया में कहते हैं ना, आहार निद्रा मैथुन, अगर ये तीनों आपका सही नहीं होगा तो बिल्कुल ही कोई भी आदमी
उसका सब दुनिया में जितने सारे डिजीजेस हैं सब होगा। तो क्या है, मेरा भी वही हाल था, क्योंकि मैं इवेंट फील्ड में हूँ, म्यूजिकल प्रोग्राम होता है, मैं सोने में मेरे को मतलब टाइम नहीं मिलता है, मेरे को खाने में सही टाइम नहीं मिलता है, रात भर ऐसे मैं अनिद्रा रहता हूँ, तो जागा हुआ रहता हूँ, और फिर क्या है इस तरह चलता है। फिर मेरा स्टैंड होने के बाद मैं एलोपैथिक मेडिसिन लेता रहा, लेकिन ये बीच-बीच में मेरे को ये रेगुलरली जिसका होता है ना, वो हार्ट का मसल पेन होता है, लेफ्ट हैंड का मसल पेन होता है, थोड़ा बहुत पेन चलता ही रहता है आदमी के। ये सब होता है एंग्जायटी एंड स्ट्रेस, ये हमेशा कुछ ना कुछ रहता है, क्योंकि आदमी के दिमाग में ये घुस जाता है कि मेरा कुछ हो गया, मतलब बहुत बड़ी चीज मेरा हो गया है, तो कभी कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये चीज को मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज को नहीं लेना है। और सबसे बड़ी बात मेरे को अच्छा लगा, ये 1-2 महीने पहले, शायद 2 मंथ्स बिफोर, जो हमारे जीबीडी है गोपाल जी, और हमारे गुरु भाई भी हैं, मेरे पुराने मित्र भी हैं, ये एक बहुत अच्छी बात ये बता रहे थे, श्री श्री ठाकुर जी का। ये तो लास्ट मैं देख रहा हूँ 25 सालों से वो मतलब इतने मतलब स्ट्रांगली बिलीव है ठाकुर जी के सब मतलब जितने कहा ठाकुर जी ने सब एडवाइस दिए हैं, ये सबको मानते हैं, मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो हम लोग तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये करते थे, तभी इनको इतना पॉजिटिविटी मोटिवेशन मिलता है कि उन्होंने वो ये बताए, मतलब मीटिंग में बताया था, मैं सुन रहा था कि किसी भी अगर कोई भी पेशेंट हो, उसको रोगी को रोगी नहीं बोलना है, उसके सामने कोई नेगेटिविटी नहीं बोलना है, पावर ऑफ पॉजिटिविटी। तो पॉजिटिव थिंकिंग, तो पहले अपने आप को मतलब वो पॉजिटिव रखना है। तो वो चीज मेरे को सबसे बहुत बढ़िया लगा था उस वक्त। मैंने कुछ बोल नहीं पाया, हालांकि उनको कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया था, दे नहीं पाया वो, क्योंकि बहुत अच्छा सा मीटिंग चल रहा था, ट्रेनिंग सेशन चल रहा था, इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। आज मैं उनको एकदम थैंकफुल हूँ उनके तरफ कि कम से कम एक कोई तो है जो मतलब समझते हैं। ये ठाकुर जी की फिलॉसफी है। और मेरे बड़े भैया, वो तो उनका हौसला हमेशा बुलंद है, मतलब किसी भी परिस्थिति में वो खड़े ही रहते हैं। और फिर मैंने क्या किया, उनको फॉलो किया, वो बहुत ऐसे में हमेशा रहता था, पॉजिटिव रहता था, और पहले से ज्यादा मैं एनर्जेटिक हूँ, ये हूँ। लेकिन पिछले साल ये जो मेरा पिछले लास्ट 3-4 साल से चल रहा था, जो पेन थोड़ा बहुत होता था, मैं डॉक्टर को बोलता था, मेरे जो कार्डियो स्पेशलिस्ट है डॉक्टर उत्तम पटनायक, कार्डियोलॉजिस्ट, जो एचओडी कार्डियोलॉजिस्ट एससीबी मेडिकल कॉलेज कटक, वो मेरे को गाली करते थे। वो भी पॉजिटिव आदमी है, वो कोई नेगेटिव सोचने को मतलब नहीं देते हैं और मना भी करते हैं। लेकिन हम लोगों को घर में माँ बाबा जो है, माँ मौसी, वो सब खिला देते हैं जो जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाए, क्योंकि वो नहीं सोचते हैं, उनको ये दिमाग में घुसता ही नहीं है कि हमारा एक ऑयल है जो राइस ब्रान ऑयल, उसको खाने से मतलब कोलेस्ट्रॉल फ्री है, ये मोदी केयर का सबसे बेस्ट है। और मेरे भाई के वजह से लास्ट ईयर में मुझे पता चला कि जो मोदी केयर ने अभी वेलनेस प्रोडक्ट्स बनाए हैं, उसमें कार्डियो एक्टिव है, फ्लैक्सीड ऑयल है, और बहुत सारा ये तुलसी, और अभी तो बहुत सारी चीज अभी लॉन्च हो गया है। और तो मैंने चारों चीजों को लिया, पिछले अक्टूबर से मैं इसको खा रहा हूँ, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, कार्डियो एक्टिव, और मल्टीविटामिन एंड फ्लैक्सीड ऑयल। तो इन सबको मैं खा रहा हूँ अभी। इसको खाने, जब कार्डियो एक्टिव ट्राई किया, फ्लैक्स ऑयल ट्राई किया, तब मेरे को, अभी मैं सच में आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरे गुरुजी गुरुदेव हैं, मेरे आइडियल हैं श्री श्री ठाकुर, और मैं आपको सच्ची में बोल रहा हूँ, अपना फीलिंग्स बोल रहा हूँ। एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा था, लेकिन वो पेन, एंजाइटी, ये सब रेगुलरली भी कुछ ना कुछ होता ही रहता था। लेकिन अभी मोदी केयर का ये कार्डियो एक्टिव प्रोडक्ट यूज करने के बाद मैं भूल ही गया। पहले दिन से, मतलब 1-2 दिन में ही मुझे पता चल गया था कि ये बहुत इफेक्टिव है और बहुत प्रोटेक्टिव है, और ये मेरे लिए इतने दिनों बाद मुझे सही चीज मिला, क्योंकि मैं नॉनवेज भी खा लेता था। और पिछले साल ऐसी एक दुर्घटना आप इसको बोल सकते हैं, नॉनवेज खाने के बाद मेरा बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था। एक रात में मुझे लगा कि खड़ा वहीं मेरा स्ट्रोक हो जाएगा, चिकन खाने के बाद। मेरी भांजी ने बनाया था, हालांकि बहुत स्पाइसेस बना के। उस रात मैंने डिसाइड कर, और बहुत सारा मतलब जो एंटासिड जितने तरह का हो सकता है,
मैंने लिया था, लेकिन उसी रात प्रॉमिस किया था कि श्री ठाकुर इसके बाद फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग ऑनवर्ड्स आई वोंट टेक एनी नॉन-वेज आइटम। इवन फिर मेरा सुस्तानी भी हो गया, भैया के वजह से हो गया। अभी आप लोग मतलब जो बोलते हैं ना वेजिटेरियन होके, अभी मैं उसका रिजल्ट मिल रहा है। तो क्या होता है, डॉक्टर लोग भी माल प्रैक्टिस करते हैं। वो कोई भी आदमी अगर मेडिकल में पहुंचता है कार्डियो का प्रॉब्लम लेके, पहले से ही वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे ड्रामा करते हैं। अरे आपका ये हो गया, वो हो गया, आपका फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा। बिल्कुल सुनना ही नहीं है। ठीक ट्रीटमेंट होने के बाद सही सही ये न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट्स खानी है। ये हमारा जो मोदी केयर ने जो हर मेडिसिन बना है, इसमें मैं आपका एंजाइटी, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका लिपिड प्रोफाइल, ये सब एकदम बराबर रहता है, बराबर रहता है, मैं आपको बोल रहा हूँ। और अभी मैं पहले से ज्यादा एनर्जेटिक हूँ, ज्यादा मतलब खुश हूँ। और मेरे को मैं जैसे उड़िया में बोलते हैं ना, मोर कौन अब डो, तो ऐसे ही मैं हर चीज को ऐसे ही लेता हूँ। अरे चलो सो व्हाट, नथिंग विल हैपन, मुझे पता है। और मुझे पता है अब इस तरह से मैं अगर इसको लेता रहा तो आगे बहुत सालों आप भी हैं, हम भी हैं, सब रहेंगे। श्री ठाकुर के ब्लेसिंग के वजह से डेफिनेटली हमारा मतलब मेरा अच्छा ही होगा। बहुत दिन जीऊंगा, बहुत मेहनत से करूंगा और मुझे बहुत सारे पैसे भी कमाना है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मेरा सब इवेंट सब पिछले साल से अभी रुका हुआ है। थोड़ा बहुत चल रहा था, फिर बंद हो गया। फिर मैंने रियलाइज किया नहीं, ये मेरे साथ हमारे जो जीबीडी हैं, हमारे मेंटर वो गोपाल जी, तो 20 साल पहले वो हमारा बहुत मतलब मेरे को, मैं जब भी सोचता हूँ उनके बारे में, जब भी वो मीटिंग में आते हैं, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, दिल एकदम खुशियों से भर जाता है। वो बहुत फ्लैशबैक बहुत अच्छा होता है। हम लोग, आप लोग नहीं सोच सकते हैं, हम लोग अपने मित्र के तरह, भाई के तरह एक ही बेड पे सोते थे। जैसे हमेशा वो मजाक में कहते हैं हनीमून कितना चल रहा था हमारा, तो बस। लेकिन आज वो है, हम यहाँ पे हैं। मैं देख रहा हूँ कहाँ से कहाँ वो पहुंच गए, ये मोदी केयर को पकड़ के और श्री ठाकुर को आइडियल बना के। अभी ये हमारे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, आइडियल है। और मेरे बड़े भाई जो है एसीडी, वो भी काफी हद तक बहुत इतना स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर है, पूछो मत। थैंक्स टू हिम, ऑलवेज ही केयर्स मी, ही ऑलवेज थिंक फॉर मी एंड फॉर माय फैमिली। और आगे और ज्यादा समय न लेते हुए आप लोगों को मैं अभी दिखा रहा हूं, आप देखिए। शायद थोड़ा टाइम आप लोगों का ज्यादा ले लिया मैंने। आप लोगों को सुनाई दे रहा है? हाँ, आपका वीडियो लेकिन नहीं आ रहा है अभी। अरे अभी आया क्या? हाँ अभी आया, अभी आया। यस यस। हाँ क्लियर। ये अभी देख लीजिए आप, इसमें जो ऑयल था वो एकदम सब नीचे चला गया है। नजर आ रहा है क्या? यस। थोड़ा बहुत तो दिख रहा है। ये कैमरा में इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा तो नेटवर्क के इशू चल रहे हैं। पता नहीं ये कितने बार नेटवर्क चला गया था, लेकिन इसको मैं 5 मिनट से बकबक कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये नेटवर्क नहीं गया। ठीक है, दिख रहा है राजेश, थैंक यू। प्लीज यस इट्स विजिबल। और मैं आप लोगों को सच में, आप कोई कुछ समझ सकते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। देखिए ये फ्लैक्स ऑयल है, ये मल्टीविटामिन इधर रखा हुआ है, ये तो कार्डियो एक्टिव है। और देखिए मैं आपको थोड़ा मैं दिखाना चाहूंगा। और ये मेरे सब प्रोडक्ट्स हैं, नॉट लेस देन 30 to 40 प्रोडक्ट्स आई एम यूजिंग रेगुलरली इन माय होम। आप लोग देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू, बहुत बढ़िया राजेश। और मुझे पता है कि ये मोदी केयर हमको बहुत आगे लेके जाएगी, और ये मेरा लाइफ सेविंग है, लाइफ सेवर है। थैंक यू ऑल। और थैंक यू गोपाल भाई, जय गुरु। थैंक यू। थैंक यू ऑल। ओके, सो दोस्तों, थैंक यू सो मच। सच ए नाइस प्रेजेंटेशन। आज शाम एक ऐतिहासिक शाम बन गया। अभी 9:20 ऑलरेडी हो चुका है।
मानस जी, तपन सर अभी आएंगे? हाँ, तपन सर आने वाले थे, शायद आगे होंगे सर, एक बार चेक कर हाँ, लीजिए। तो अभी है, तपन सर है। अच्छा, अगर ठीक किसी है। का पास कोई हाँ, हार्ट कोई रिलेटेड कोई सवाल है, आप तपन सर को पूछ सकते हैं। थोड़ा देरी हो गया, लेकिन और 5-10 मिनट, हाँ, क्योंकि 5-7 मिनट आप। स्पेशल सेशन है, सर हैं, तो यस यस मैं यस सबसे यस। गुजारिश रखूंगा, कोई भी क्वेश्चन है प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि ये मौका फिर से शायद ना आए। थैंक यू फ्रेंड्स। यस, हार्ट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हाँ, आप पूछ सकते हैं। किसी भी पेशेंट का, किसी भी जिसका भी सर से पूछ सकते हैं। ओके, सबको मैं अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ सर, सर। ओके। गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग। बहुत ही एक्सीलेंट सा सेशन रहा सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही शानदार, बहुत ही नॉलेजफुल था ये सेशन। और मेरा क्वेश्चन है टू डॉक्टर तपन सर, शायद सर अगर हैं, आई थिंक सर तो है। हाँ, तपन सर है जी। Yes, तपन सर पूछिए सुन पूछिए। पा रहे हैं मुझे? एक्चुअली सर म्यूट किए हुए हैं शायद। तपन सर खुद को अनम्यूट करिए। हाँ, यस यस यस, तपन सर आ गए। जी, तपन सर जय गुरु। जय गुरु। एक्चुअली सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी जो मदर है, जिनमें माँ है, उनका ऑपरेशन मैंने करवाया था 2 साल पहले सर, दैट टू ओपन हार्ट सर्जरी। तो उनका एक बल्ब लगा था, टिश्यू बल्ब वहाँ पे लगवाया गया था, वो दैट टू इन हाईटेक हॉस्पिटल भुवनेश्वर में। ओके। तो सर 2 साल से उनका जो मेडिसिन है वो ठीक ठाक चल ही रहा है, जैसे कि एसिट्रोम 1 खाते हैं और इकोस्प्रिन 75 एंड मेटेक्सेल 25 डाइटर प्लस एलएस। सो 2 साल के बाद सर, अब जब मैंने उनका रेगुलर चेकअप करवा रहा था, तो अभी जब मैंने लास्ट चेकअप करवाया एक महीने 1.5 महीने पहले, तो डॉक्टर निमाई ने मुझे कहा कि उनका जो बल्ब रिप्लेसमेंट हुआ था, वो बल्ब सही है, वो सही मात्रा में काम कर रहा है, सही मायने पे काम कर रहा है, लेकिन जो राइट बल्ब है उसमें थोड़ा सा लीकेज है। तो मैंने सर उनको पूछा कि सर इसमें अभी ऑपरेशन नीड है या फिर हमें सिर्फ दवाई खाना होगा। तो सर वो मुझे बोले कि नहीं, इन्हें ऑपरेशन नीड नहीं है, शायद नहीं लगेगा, लेकिन आपको दवाई खाना होगा और एवरी मंथ में चेक करना होगा। ये एक पॉइंट है। तो मैं सर जानना चाहता हूँ कि अगर ये दवाई मैं जो अभी दे रहा हूँ मम्मी को, एसिट्रोम 1, रिगार्डिंग ऑन पीटीआईएनआर टेस्ट, हर महीना में सर पीटीआईएनआर करना पड़ता है, वो रेटिंग देखते हुए वो फिर चेंज होता है एसिट्रोम का जो डोजेस है। तो सर मैं वो दवाई अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ, जैसे कि इकोस्प्रिन 75, मेटेक्सेल 25, एसिट्रोम 1 एंड डाइटर प्लस एलएस। सो मैं जानना चाहता हूँ सर, इसके साथ ये जो मोदी केयर का हमारा जो प्रोडक्ट है कार्डियो एक्टिव, जो एक बेहतरीन सा प्रोडक्ट है, इसे सर अगर मैं देता हूँ तो इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा जी सर। यदि टिश्यू वाल्व लगा हुआ है, जी। if there are no other compelling indication for एसिट्रोम नहीं देना चाहिए। ओके। टिश्यू ओके। वाल्व इसलिए लगाया जाता है कि हमें एसिट्रोम देना नहीं पड़ेगा। ठीक है। जी। एसिट्रोम इज ए स्ट्रॉन्ग ब्लड थिनर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लड थिनर है। उसका जी सर। कॉम्प्लिकेशंस भी है, जैसे ब्रेन में जी। ब्लीडिंग हो जाना, पेट में ब्लीडिंग हो जाना, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस है। इसीलिए जो एल्डरली एज ग्रुप है जिसमें वाल्व रिप्लेसमेंट होता है, टिश्यू वाल्व में हम लोग रिप्लेस करते हैं। टिश्यू वाल्व में मैक्सिमम फॉर फ्यू मंथ्स एसिट्रोम की जरूरत होती है। उसके बाद मे बी आफ्टर 3 to 6 months और मे बी अप टू 1 year दिया, उसके बाद द एसिट्रोम इज विथहेल्ड, ओनली इकोस्प्रिन चलता है उसमें। यदि साथ में आर्टेरियल फिब्रिलेशन टाइप का और कंपेलिंग इंडिकेशन हो जी, या ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, तभी जाके एसिट्रोम कंटिन्यू चलती है। अदरवाइज पर से with tissue valve only, there is no atrial fibrillation, no brain stroke, nothing like that, then there is no need to give esitrom. So you do verify it with the cardiologist whether esitrom is needed or not. Okay, that is one thing. ओके सर। So ओके सर। these medicines are double-edged swords. Okay, double-edged swords. Be careful about that. That is one thing. Second, Okay, you sir. asked me about Medicare drug, or I listened to a bit of your compounds, your जी products. सर। Actually, these are a bit of Ayurvedic products,
and How oxygen hai? they have a lot of beneficial effect. May it be from different vitamins, minerals, certain micro elements. All these things are there, and these do help to keep our systems healthy. ठाकुर जी भी जब वो प्रैक्टिस करते थे, ठाकुर जी भी डॉक्टरी पढ़ाई किए थे, उनके पास उसी टाइम की 1920s 30s की बात कर रहा हूँ, उस टाइम उनके पास इतना लंबा लाइन लगा रहता था कि आसपास की जितने भी डॉक्टर्स हुआ करते थे वो बहुत ईर्ष्या करते थे उनसे, और मतलब उसी टाइम का उनका फीस 300-500 रुपया देने के लिए लोग तैयार थे। तो बात यह है, ठाकुर जी खुद बोले हैं, जब हम लोग दवाई देते हैं, कुछ भी कोई भी एलिमेंट्स हुआ उसमें दवाई देना शुरू करते हैं, तो साथ में हम लोग देते हैं कोई एसिडिटी ना हो, उसके लिए थोड़ा सा हम लोग पेंटॉप टाइप का कुछ दे देते हैं, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स। कुछ हमारे जो मिनरल्स है, विटामिन का डेफिशिएंसीज क्रॉनिकली होता ही होता है, उसके ऊपर कभी भी कोई बीमारी हुआ, एक्यूट इलनेस हुआ, उसमें भी हमें थोड़ा सा सप्लीमेंट्स देना पड़ता है। जैसे कि अभी कोरोना में आप देख लीजिए, जिंक, विटामिन सी, विटामिन डी, आप सबका विटामिन डी टेस्ट कराओगे तो 30 to 50% आर विटामिन डी डेफिशिएंट, दे डू हैव मेटाबॉलिक इम्प्लीकेशंस। तो इस हिसाब से बहुत सारे माइक्रो एलिमेंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड ऑल दीज थिंग्स थोड़ा बहुत डेफिशिएंट रहता है, और ऊपर से एक्यूट इमरजेंसी या एक्यूट इलनेस में उनका सप्लीमेंटेशंस हेल्प्स अस टू रिगेन आवर हेल्थ, और जल्दी से जल्दी हम बीमारी से लड़ के सही हो जाए। उसके लिए ये सब साइड में सपोर्ट सिस्टम काम करते हैं। उसी हिसाब से मैंने जो देखा, आप लोगों का जो मोदी केयर प्रोडक्ट्स जो हैं, दे डू हैव इम्प्लीकेशंस फ्रॉम दिस पॉइंट्स ऑफ व्यू। तो लेकिन मैं ये कमेंट नहीं कर सकता हूँ कि आपका जो मदर का जो बीमारी है, जो हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट हुआ है, और उसके लिए ये देने से एसिट्रम हट जाएगा या और दवाई कम हो जाएगी, या जो लीकेज दूसरा वाल्व में हो रहा है और कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ये मत सोचिएगा कि इसको लें और दवाई कुछ बंद कर दें, या इसको लें तो लीकेज भी बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं। या एलोपैथी की भी कोई ऐसा दवाई नहीं कि लीकेज बंद हो जाएगी। हाँ, यदि हार्ट की जो मसल्स हो, हार्ट की डायलेटेशन ज़्यादा ना हो, उसका जो मानस जी जो बात करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक से बहुत बड़ा रिसर्च हुआ है, उसके ऊपर आपका नोबेल प्राइज वगैरह मिला हुआ है, और ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। उसके ऊपर तो हमारे जो मेडिसिन ड्रग्स बना हुआ है, आपका सर्बिट्रेट, नाइट्रेट्स जो है, नाइट्रोग्लिसरीन से सारे उससे बना हुआ है। वेसल डायलेटेशन होती है उसमें, जो संकुचित हो गया है वेसल ब्लॉकेज के चलते, वो डायलेट होती है, तो ब्लड सप्लाई बेटर होती है। तो ब्लड सप्लाई बेटर होगी तो हार्ट की जो मसल्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा बेटर होगी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। लेकिन हाँ, आपका जो मदर की जो लीकेज हुई है, जो डॉक्टर आपका देख रहे हैं, ही इज द बेस्ट पर्सन टू कमेंट ऑन इट, because I am not seeing your echocardiography report, I am not seeing the patient herself, okay, so I cannot comment on that कि उसमें ऑपरेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ, यदि वो कह रहे हैं कि जो प्रोस्थेटिक वाल्व वो ठीक काम कर रहा है, दूसरा जो वाल्व में लीकेज है उतना नहीं है कि कोई ऑपरेशन की जरूरत है, तो ठीक है, दैट इज ओके। वैसे ही हम लोग अप्रोच करते हैं पेशेंट्स को। ठीक है, तो लीकेज माइल्ड टू मॉडरेट हो तो उसको जस्ट वी कैन हेल्ड ऑफ विथ अदर मेडिकेशंस, ताकि वो लीकेज ना बढ़े, मसल्स ना फैल जाए। उसके लिए बहुत सारी मेडिसिन होती है, वो दे रहे हैं आपका। तो लेकिन मोदी केयर प्रोडक्ट से लीकेज बंद हो जाएगी या उस टाइप का मेडिसिन कुछ बंद हो जाएगी, ये मैं नहीं कमेंट करूंगा, या ऐसा नहीं है एक्चुअली। और बाकी जो इससे स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटी मसल्स की, जो ब्लड सप्लाई जो है हार्ट को, उससे बेटर होगा। दैट यू आर द पर्सन्स, यू ऑल आर द पर्सन्स हु आर लुकिंग आफ्टर दिस प्रोडक्ट्स। तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, यदि आपका प्रोडक्ट में ये सब है, द मैकेनिज्म एक्शन, देन होगा डेफिनेटली। जस्ट लाइक मिनरल विटामिन्स जो हम लोग दे रहे हैं, उसका तो इफेक्ट कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है, इफेक्ट होता ही होता है। तो उस हिसाब से इसका डेफिनेटली उस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पैक्ट होगा, इफेक्ट होगा। ओके ओके सर, थैंक यू सर।
अच्छा, मैं लास्ट में दिखा दूं एक स्लाइड एक्सरसाइज के ऊपर एक स्लाइड दिखा दूं आपको, आप लोगों को। यस सर 5-7 मिनट लूंगा। ये Yes, छूट yes. गया था, आप लोग को नहीं दिखा पाया था। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज फॉर आवर हेल्थ, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, ये मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, मैं शेयर कर दे रहा हूँ। यस सर ये शेयर हो रहा है आपके पास? अभी तक तो सर शेयर नहीं हुआ है। अभी सर हुआ? तब तक एक शायद रश्मिना मैडम कुछ हैंड रेज किए हाँ, थे, कुछ जरूर नहीं, मनोज जी क्वेश्चंस आप सर शेयर करिए। हाँ सर, ठीक है सर, टाइम भी स्पेशल सेशन हो गया। हाँ, क्वेश्चन पूछिए, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछ लीजिए। रश्मिता जी, एक सेकंड। गुड मॉर्निंग सर। यस नमस्ते तपन सर। पूछिए। सर एक लड़का है सर, ये 14-15 साल का। उसका सर क्या होता है, कभी कभी अगर कुछ ठंडा खा लेता है या कुछ ऐसे ठंड लगता है, तो उसका जो सांस है सर वो फूल जाता है कभी कभी, और जो हम लोग ये ब्रीदिंग टाइम में वो थोड़ा सा तकलीफ होता है सर उसको, तो क्या करेंगे उसको? देखिए, ये जो ठंडा जुकाम लग जाना ठंडा चीज खाने पे, ये आम बात है, ठीक है, बच्चों में ये वेरी कॉमन, ओके, नथिंग टू वरी अबाउट इट। बट इफ इट इज 4 to 5 टाइम्स इन अ ईयर, 3-4-5 बार तो ये कॉमन चीज है, ठीक है। सबसे बढ़िया चीज है, यू आर द बेस्ट डॉक्टर फॉर दैट चाइल्ड। डॉक्टर इसलिए कि आप पहचान लेते हो कौन सा खाना खाने से, कौन सा चीजों से उसको ठंड लगती है। सो बेटर अवॉइड दोस थिंग्स, ठीक है, जितना हो सकता है अवॉइड कीजिए। सो दैट इज द बेस्ट, यही सबसे अच्छा इलाज है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, यदि आप ज्यादा वरीड हैं, टेंस हैं, तो एक बार जरूर पेडियाट्रिशियन के पास लीजिए या कार्डियोलॉजिस्ट के पास लीजिए। पेडियाट्रिशियन के पास पहले लीजिए, पेडियाट्रिशियन, ओके, चाइल्ड डॉक्टर्स। दे विल लुक आफ्टर द चेस्ट, लंग्स देखेंगे, हार्ट देखेंगे, उसमें कोई ऐसा बीमारी है कि नहीं, हो सकता है छोटा मोटा टेस्ट भी कर लें, एक्सरे कर लें, इकोकार्डियोग्राफी कर लें, उससे क्लियर हो जाएगी कोई बड़ी प्रॉब्लम है कि नहीं। देन आल्सो यू विल बी रिलीव्ड कि हाँ कुछ नहीं है, ऐसे ही जो मौसम की या खान पान से ये थोड़ा हो सकती है। ओके, यस सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। स्क्रीन शेयर तो नहीं हुआ है? हाँ, स्क्रीन शेयर मैं कर रहा हूँ अभी। यस, नाउ आई विल बी शेयरिंग इट। और सबको मेरा रिक्वेस्ट है 5 मिनट्स मोर, इसके बाद अभी दिख रहा है? Able to see it now? यस सर, मॉनिटर में आ गया। एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। मैंने आप लोगों को दिखाया था द डाइट पार्ट, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, एंड आई विल टेल यू why diet part is more important. That I'll come first. Look after the exercise part, exercise for health. Okay, this is the American recommendations for their citizens over there. So at least 150 minutes a week one should go for aerobic activities. Okay, aerobic activities. Aerobic activities में क्या क्या है? साइकिलिंग हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, देन रनिंग हो सकती है, देन ब्रिस्क वॉक हो सकती है। ओके, these are known as aerobic activities. So moderate intensity aerobic activity 150 minutes a week, that is 30 minutes per day for 5 days a week. हफ्ते में 5 दिन, हर दिन आप 30 मिनट आप वॉक करें, एक्सरसाइज, आप साइकिलिंग करें, आप मिला जुला के करें, स्विमिंग करें, कुछ आउटडोर स्पोर्ट्स खेलें, आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, then all these things amounts to or accounts for your aerobic activities. So aerobic activities कितना होना चाहिए? 30 minutes per day for 5 days a week. So 150 minutes a week. Okay. साथ में क्या होना चाहिए? आपका muscle strengthening exercise. Muscle strengthening exercise क्या है? Push-ups, your weight liftings. Okay. These are muscle strengthening activity. ये ज्यादा नहीं चाहिए, 2 days a week चाहिए। हफ्ते में 2 दिन 30 मिनट या 15 मिनट आप कर सकते हैं।
ये भी लास्ट में कमेंट आप देख लीजिए. If that is more than you can do right now, do what you can, whatever physical activity for whatever amount, may it be 5 minutes a day. जैसे हम लोग ठाकुर जी बोलते हैं ना कि ध्यान आप आधा घंटा 30 मिनट्स 45 मिनट्स आप ध्यान कीजिए तो बहुत अच्छी बात है. यू विल गेन ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस. आपकी मेंटल फैकल्टीज बहुत सारे खुल जाएंगे, बहुत सारे. उससे आपका फिजिकल जो हेल्थ, मेंटल हेल्थ इससे बेटर होगी. ओके, but if you're not able to do 30-45 minutes of meditation, but 5 minutes a day, वही बाबाइदा बार बार कहते हैं 5 मिनट तो मेडिटेशन कीजिए आप रोज, बट मेक इट रेगुलर हैबिट. मेक इट रेगुलर हैबिट कि 5 मिनट कम से कम तो मेडिटेशन में बैठिए. ऐसे ही मेक इट अ हैबिट, कम से कम 5 मिनट तो कुछ फिजिकल एक्टिविटीज कीजिए. 5 मिनट, उससे भी बेनिफिट है आपको. ओके, व्हाटएवर यू वांट, वॉक, रन, डांस, प्ले, व्हाटएवर यू लाइक, डू इट. और इसके ऊपर रिसर्च हुआ, ऐसे नहीं बोला जा रहा है ये सारी चीज. अमेरिकन्स आर वेरी मेटिकुलस अबाउट दिस थिंग्स. थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स लोगों के ऊपर एक्सरसाइज के क्या मोर्टालिटी बेनिफिट, मोर्टालिटी डेथ के ऊपर बेनिफिट है कि नहीं, ये देखा गया है. ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में ये जामा में ये पब्लिश हुआ था 2015 में. ये देखिए कि ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, मोर्टालिटी कम होते जा रहा है. जैसे अब एक्टिविटीज आपका बढ़ रहा है 5 मिनट, 10 मिनट, 7.5 मिनट्स, देन अप टू 15 मिनट्स. कितना मिनट्स इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज इक्विवेलेंट टू हाउ मच मिनट्स, दैट इज देयर, नीचे लिखा हुआ है. लेकिन मोटा मोटा मैं बोल दे रहा हूं आप लोगों को. मोटा मोटा ये है, ये ग्राफ जो देख रहे हैं नीचे की तरफ जा रहा है, जो डॉट में कनेक्ट किया गया है. जितना आपका एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ रहा है, थोड़ा सा भी हो रहा है, 5 मिनट 10 मिनट भी आप कर रहे हैं, तो आपको मोर्टालिटी बेनिफिट मिल रहा है. यदि आप सफिशिएंट अमाउंट में करेंगे, जैसे 30 to 40 मिनट्स डेली फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, मॉडरेट इंटेंसिटी, तो यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ योर फिजिकल एक्टिविटी मोर्टालिटी में. साथ में तो ब्लड प्रेशर लोअरिंग इफेक्ट है, डायबिटीज में शुगर कंट्रोल रखने की इसका इंपॉर्टेंस है. सो फीलिंग वेल, उसका इंपॉर्टेंस है. ओके, ओबेसिटी कम होने का इंपॉर्टेंस है. देन योर गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल बढ़ जाने का इंपॉर्टेंस है, एलडीएल कम होने की इंपॉर्टेंस है. सारे इंपॉर्टेंस है इसके साथ. उसके साथ साथ मोर्टालिटी बेनिफिट भी है. और वही चीज, और दूसरा जो स्टडीज है उसमें भी यही देखा गया. बट अल्टीमेटली डाइट वर्सेस एक्सरसाइज, डाइट वर्सेस एक्सरसाइज किसका कितना इंपॉर्टेंस है, ये देखिए. ये 8 चीज जो है फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल प्रोसेस जो ह्यूमन हेल्थ एंड लंजेविटी, आयु बढ़ाने में काम करते हैं, वो है ये जो प्रोसेसेस हैं: ग्लाइकेशन, ऑक्सीडेशन, मिथिलेशन, इन्फ्लामेशन, माइटोकॉन्ड्रियल डिस्टिंक्शन, membrane instability, insulin resistance, autophagy. All these things comes into play for your health and longevity. Out of this, exercise helps only 0.4 and 0.5. Inflammation and mitochondrial distinction, ये दोनों में ही उसका रोल बहुत ज्यादा है. बाकी सारा 8 out of 8 all are related to diet. However, diet can help all 8 of them. In fact, all 8 are caused by food or absence thereof. Very important. खाना खाना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ज्यादा अच्छा है खाना नहीं खाना. ये कौन सा खाना नहीं खाएं, ठीक है. खाना कट ऑफ कैसे करना, ये ज्ञान लेना बहुत जरूरी है. खाना खाने के लिए तो चारों तरफ पड़ा हुआ है. इकोनॉमिकली ऑल्सो वी आर वेल टू डू. तो खाने के लिए कमी नहीं है हमारे पास. ये जो गरीब देश बोलते हैं ना, वो नहीं है, ऐसा नहीं है. गरीब हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि हमारा सोच विचार जो है, कौन सा खाना सही है, कौन सा गलत, कितना परिमाण में ज्यादा है, कितना कम है, ये ज्ञान नहीं है. उसमें पॉवर्टी है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो टेक अवे इज ए बैड डाइट कैन नॉट बी आउटरन. बैड डाइट किसी से मतलब और उससे ज्यादा खराब नहीं हो सकता है. उससे आप भाग नहीं सकते हो. उसको विचार में लेना पड़ेगा, तभी जाके आपका सही होगा. ये डाइट के ऊपर था और एक्सरसाइज के ऊपर थोड़ा बहुत था. तो नाउ यू कैन पुट सम क्वेश्चंस इफ समबडी वांट्स. ओके सर, थैंक यू सो मच सर. ओके, ओके. सो मनोज जी एंड टीम, थैंक यू सो मच. तपन सर, थैंक यू सो मच. आप आए और हमको स्वास्थ्य के बारे में सही तरीके से, सही ढंग से
इसे कैसे निराकरण किया जा सकता है, हाउ टू मतलब जो रूट कॉज को कैसे हम पकड़ते हैं, मन को कैसे शांत रखते हैं, मन को कैसे शांत रखेंगे। तो 4 चीज आप मेन चीज जो 4 चीज के बारे में बताए। तो सुस्त होने के लिए जब पहले एक अच्छा स्लाइड भी आप दिखा रहे थे, तो WHO बोलता है कि एक सुंदर शरीर का डेफिनेशन एक्चुअली क्या होता है, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली अगर वो फिट होता है, सिर्फ फिजिकली फिट होने से नहीं चलेगा, मेंटली भी फिट होना चाहिए और सोशल भी फिट होना चाहिए। इसके बारे में आप बताएं कि आपको एटीट्यूड सही रखना है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखना है, मन को शांत रखना है, उससे सीधा रिलेटेड हेल्थ के ऊपर है। और एक्सरसाइज के बारे में अभी आप बताएं, न्यूट्रिशन के बारे में आज तो बहुत चर्चा हुआ, राइट, और रेस्ट के बारे में चर्चा हुआ। तो जैसे EARN, E फॉर एक्सरसाइज, A फॉर एटीट्यूड, R फॉर रेस्ट एंड N फॉर न्यूट्रिशन। तपन सर बहुत सुंदर तरीके से हम सबको आज बताए। सो थैंक यू सो मच, आप आए और हम सबको हम ये उम्मीद करेंगे कि और बीच बीच में अभी ये जो कोरोना का लहर चल रहा है, अगर बीच बीच में आपका कोई मैसेज बहुत सारे लोगों को लाइफ में सुस्त शरीर बनाने के लिए हेल्प एंड सपोर्ट करेगा सर। सो आप अगर दोबारा कभी आ सकते हैं, आपका अगर टाइम होगा तो, सो यू आर मोस्ट वेलकम सर टू दिस प्लेटफॉर्म। एंड मानस जी एंड टीम, थैंक यू सो मच कि आप इतने सुंदर तरीके से आज शाम को। थैंक यू यस मिस्टर विदिश पलित जी, थैंक यू सो मच। सुदीपा, थैंक यू सो मच। एंड मानस जी, थैंक यू सो मच। एंड राकेश जी, थैंक यू सो मच। आप इतने अच्छी तरीके से आप खुद का टेस्टिमनी आप बताए। थैंक यू सर। और सर थैंक यू, ये आपके बड़कपन है। और थैंक यू ऑल माय फ्रेंड्स, माय व्यूअर्स जो हमारे साथ इतने 1.5 घंटे तक भी हैं। सेशन ज्यादा हो गया। सबसे बढ़िया रहा सर जो लास्ट को जो एक्सरसाइज बताए, मतलब इतना मैं तो आप लोगों में से आप तो सब सुस्त हैं, मैं थोड़ा अस्वस्थ हूँ, लेकिन मैं सबसे सुस्त मानता हूँ अपने आप को। मुझे ये बहुत बेनिफिट मिला, बहुत, क्योंकि मैं सो तो सब अच्छी बात बताए, खाना खा के अगर पछताना ना खाने से सबसे ही अच्छा है, इसलिए मैंने वो सब खाना छोड़ दिया जिसमें मेरे को टेंशन आई। यस राजेश जी, एक चीज है कि इष्ट निसारे उद्दाम मन रोग शक्तिर धार धारे कम, राइट। जी भाई जी। जब आपके पास इष्ट निशा आ जाएगा ना, कोई भी रोग आपको पकड़ नहीं पाएगा। ये 20 साल पहले भी होता था, बस देख रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ सामने। रोग शक्तिर धार धारे कम, राइट। सो थैंक यू सो मच तपन सर, आप याद दिला दिए सबको एक्चुअली डिजीज का उत्पत्ति कहाँ से होता है। बिल्कुल। तो मन को कैसे हम शांत रख सकते हैं, मन्ना त्रायती मंत्र आप सर बता दिए अच्छी तरीके से। मंत्र उच्चारण करना है, मेडिटेशन करना है, और सही तरीके से आप बता दिए। मंटा दुष्ट हले जानिस रोग राथल होय, एटा के तू एडिए चलिस कर भी बाधिर जाए, ये सब सारे चीजें आप बता दिए तपन सर। So thank you so much and thank you मानस जी and all teams, all the participants। आप आए और आज का शाम को एक सुंदर शाम से बना दिए, और बहुत सारे हेल्थ का टिप्स आज डिस्कशन किया गया है, और जितने सारे पार्टिसिपेंट अभी तक भी आप पार्टिसिपेट किए, ये बहुत बढ़िया रहा सेशन। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू मानस जी एंड ऑल टीम्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Thank you all. Thank you all the presenters. Yes, thank you so much. Thank you sir, good night sir. Thank you. Good night sir, thank you all of you. Good night sir.